जी अस्सलाम वालेकुम। हम जो टॉपिक आज की है ऑपरेशनल ऑडिट्स और फिर इनकी जो कंट्रीब्यूशंस। Sorry, I'm back once again. I realize that people were not able to hear me. Welcome all of you. Can you all hear us? So please confirm if you can hear us now. Great, thank you very much. Thank you. Amal, the gentleman. All right, thank you very much. I delivered a very long sermon. I didn't realize that our audio was not working. So I think it's in place now. I'll do a shorter version of the introduction. Thank you very much for joining me today. A very interesting subject, and I think a lot of interest within ACCM members to attend this topic also, attend this webinar. This webinar is all about how can an organization achieve operational efficiencies, improve operational efficiencies, and what I really think is that qualified accountants can really bring in a lot of value to their businesses, to their organizations, through this very interesting skill set or tool that we're going to talk about. So operational audits, I think are the need of the hour, the economic circumstances where organizations are continuously looking at, if they can improve their operations, therefore improve their profitability, they come in very, very handy in times. Our trainer today is Mr. Muhammad Ali, a very experienced individual, also known for his trainings in import and export processing. So welcome Mr. Muhammad Ali to the session. Thank you very much for taking time out. Thank you very much for doing all the preparation and sharing your knowledge on operational audits with all the members. Keep the session very lively. Keep asking questions. We will answer your questions in the question and answer session, but keep the questions coming in. We have attached a handout by the name igarment.docs. You should all be able to see it. This is the case study that Mr. Muhammad Ali has prepared, and he's going to share this with you. You can download it, and you can access it during the session or even afterwards. The presentation that we are running will also be uploaded shortly, and therefore you should be able to download it and access it afterwards also. Last but not the least, the session is being recorded, and the recording of the session will be available to you almost straight after the session is over. So once the session is over, you will automatically get an email from our portal that the recording is available, and you may now go and access it. And therefore, you can view it once again, or parts of it once again, in your free time. So thank you very much, and I now hand over to Mr. Muhammad Ali, who will take you through the session. Ali, over to you. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है कि ऑपरेशनल ऑडिट्स और इनकी जो बिजनेस एक्सीलेंस की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या। हम नॉर्मली जो फाइनेंस के जो लोग होते हैं जो ऑडिट करते हैं, जो बहुत ही कन्वेंशनल और बड़ी कंजर्वेटिव टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर तो ऑडिट जो डिपार्टमेंट होता है इंटरनल ऑडिट, वो तो फाइनेंस की तरफ जाते हैं, ना ही फाइनेंस वाले अपना ऑडिट करवाते हैं और ना ही सेठ साहब की ये मर्जी होती है कि फाइनेंस का या अकाउंट्स का ऑडिट किया जाए। अब ऑडिटर्स को या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को रख तो लिया जाता है, स्टैब्लिश भी आप डिपार्टमेंट कर लेते हैं, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आउटसोर्स कर देती हैं बाज़ कंपनीज। लेकिन जो ऑडिट करती है ज़्यादातर स्टॉक्स का होता है, जिसमें स्टॉक काउंटिंग होगी, लाइव लॉसेस हो गए, तब नॉर्मल लॉसेस हो गए, या थोड़े बहुत एक्सपेंसेस उनको चेक करा लिया, या उनको पेरोल चेक करवा दी। अच्छा, अब वो क्योंकि हर बिजनेस में जो वर्किंग साइकिल है, वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसका मेन जो कंपोनेंट है वो रॉ मटेरियल की परचेज है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो कन्वेंशनल टाइप की, उन्हें समझा यही जाता है कि जी मेन कॉस्ट तो हमारी रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड्स है, बाकी रिसीवेबल पेबल है वो तो हमें पता है, बैंक बैलेंसेस भी हमें पता है, कैश पर जी हमारी पूरी है, चेक एंड बैलेंसेस हैं, तो हमें उनके ऑडिट्स की कोई जरूरत नहीं। तो होता ही है कि ऑडिट वाले ऑडिट में रहकर भी वहां तक की बात को ले ही नहीं पाते। अच्छा, अब जो एमएनसीज हैं, जो दूसरी बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, वहां पर जो लोग ऑडिट में हैं उनको एक्सेस होती है। अच्छा, उनका ये मसला तो नहीं है, लेकिन जो कोर इशू है वो ये है कि जो ऑपरेशंस की ऑडिट है कि नॉर्मली या तो इंजीनियर्स कर लेते हैं या प्रोडक्शन का स्टाफ खुद कर रहा होता है, क्योंकि जो उनकी रिपोर्ट जो जनरेट हो रही होती हैं उसमें ऑलमोस्ट वो सारे एलिमेंट्स, वो कंपोनेंट्स कवर हो रही होती हैं जो कि नॉर्मली रिपोर्ट करने होते हैं
ऑडिट वालों ने। लेकिन ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन है कि प्रोडक्शन वाले बिल्कुल ठीक रिपोर्ट करें, लाइन लॉसेस बिल्कुल ठीक बताए जाएं, नॉर्मल लॉसेस बिल्कुल ठीक रिपोर्ट हो जाए, प्रोडक्शन के इश्यूज बिल्कुल ना सामने आए, सप्लाई चेन का कोई इशू ना सामने आए, या जो आए वो इस तरह के हों कि जो किसी के लिए कोई जो लोग ऑन जॉब हों उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट होगी। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट जो वॉइस है ना वो खत्म हो जाती है। अगर फाइनेंस के जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि ऑडिट पढ़ लिया होता है, ऑडिट का एक अच्छा एक्सपोजर भी होता है, अगर ये ऑपरेशनल ऑडिट्स करें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, और ये एक इंडिपेंडेंट एक यू कैन से दैट इट विल बी द वॉइस फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जरूरी क्यों है, इसके ऊपर हम आगे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उनको फाइनेंस के जो लोग हैं जो हमारी फील्ड के वो अच्छी तरह से पहले समझें क्यों करना चाह रहे हैं ऑपरेशंस का ऑडिट, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अच्छा, और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। अब क्योंकि एक तरह से यूँ कह लें कि नए प्रोफेशन के लोग या जिसको ऑपरेशन ऑडिट बाय द फाइनेंस पीपल कह रहे हैं ये करेंगे तो कुछ एडवांटेजेस भी सामने आते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं, और उसके बाद हम आते हैं कि जो प्रोसीजरल जो मैटर्स हैं कि ऑडिट को अगर आप ऑपरेशंस को ऑडिट करें तो एग्जीक्यूट कैसे करना है। आप अपने क्वेश्चन साथ साथ हमसे करते रहें, जैसे ही हमारे पास टाइम स्लॉट निकलती है तो हम उसको सेशन के एंड पे रख लेंगे, या हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि उसको हम रिप्लाई करते रहें। जो सबसे मशहूर इंस्टीट्यूट है इंटरनल ऑडिट्स का वो तो CIE है, लेकिन हमारे यहाँ पार्टनर ACC और ये ACC का पार्टनर है। थैंक यू वेरी मच। तो अब कुछ स्टफ तो वहाँ से इकट्ठा हो जाता है, बाकी जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हम वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, हम ऑपरेशंस का ऑडिट करें या स्टैट्यूटरी ऑडिट करें या रूटीन का इंटरनल ऑडिट करें, एक बात तो पक्की है कि जो सिस्टमैटिक जो आपका रिव्यू करना होता है कि सिस्टम ऑफ जो है इंटरनल कंट्रोल वो है क्या, इसके डिजाइन्स क्या हैं, इसके ऑपरेशंस क्या हैं, वो तो रूटीन का टास्क है, वो तो ऑडिटर ने चेक करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर जब आप ऑपरेशन ऑडिट में जाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी एक नई चीज साथ ऐड होती है, और दूसरी बात की जो इकोनॉमी ऑफ द ऑपरेशंस है वो क्या है। हम नॉर्मली सर्च ऑडिट में ये चीज वैसे स्कोप से बाहर हो जाती है। इंटरनल ऑडिट में भी जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को ऑडिट करवा रही हैं उनके लिए तो ये चीज अहम है, और जो ऑपरेशंस ऑडिट अपने करवाते ही नहीं है, जो सिर्फ स्टॉक और पेरोल पे लगाए रखते हैं ऑडिटर्स को, उनके लिए कंसेप्चुअल है कि अगर वहां पर मैनेजमेंट कन्विंस हो जाती है ऑपरेशनल ऑडिट्स के ऊपर तो फिर ये है कि उसकी इकोनॉमी ऑफ द ऑपरेशंस का बोर्ड कीजिएगा कि क्या ये वायबल है भी सही है। मैं आपको छोटी सी आप एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी के ऑपरेशंस का ऑडिट करने से पहले उसके हमने असाइनमेंट ली कि इसकी जो है ना वो ERP इम्प्लीमेंटेशन की थी। अच्छा, प्रोजेक्ट उनका एक था, स्टिचिंग यूनिट भी था, फिर कंपोजिट यूनिट था, और उसमें एक प्रोजेक्ट उनके पास स्टिचिंग यूनिट भी था जो कि एक्सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, हर शिपमेंट प्रॉफिट में थी, जितनी भी शिपमेंट जा रही थी किसी में भी लॉस नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा जो कैश वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्ट हो रहा था वो इसी प्रोजेक्ट पे हो रहा था। बाकी प्रोजेक्ट भी प्रॉफिट्स में थे, कुछ एक उनके जो प्रोजेक्ट थे वो उनमें लॉस था, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स प्रॉफिट में थे। इसके बावजूद फर्म को सीरियस कैश फ्लोज के प्रॉब्लम्स थे, तो अपनी पेरेंट कंपनी से काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस लेते थे। अच्छा, वजह सिर्फ एक ही थी कि प्रॉफिट्स तो हैं, ये बात तो मान ली, लेकिन क्या वो प्रॉफिट्स इतनी हैं कि जब वो कैश में ट्रांसफॉर्म होगा आपका प्रॉफिट तो अगली शिपमेंट तक के लिए क्या वो प्रॉफिट आपके लिए अनफ है। होता ये था कि वो मैनेजमेंट देखती थी शिपमेंट में प्रॉफिट है या नहीं, टॉप मैनेजमेंट भी यही देखती थी हम है तो प्रॉफिट में, इसका मतलब है कि इस बिजनेस को कंटिन्यू कर लेना चाहिए। अब वो उसको कंटिन्यू तो कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो इतनी मतलब कि होती नहीं थी एनफ। अगर आप उसको इंडिविजुअली देखेंगे तो हाँ काफी सारा प्रॉफिट है, लेकिन फर्स्ट कर लें कि एक शिपमेंट गई, उसके 2 या 3 महीने बाद अगली शिपमेंट गई, इस 3 महीने के गैप को आपने फाइनेंस करना, और फाइनेंस करना है इंटरनल जनरेटेड प्रॉफिट से। अगर वो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको
फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ जाएगी। ऑपरेशनल ऑडिट्स में अहम बात यह है कि आपके ऑपरेशंस हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल भी होंगे, लेकिन क्या उनके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट लाकर उसको मजीद इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है या नहीं, और अगर वो क्वेश्चन है तो वो कितना है। और जाहिर है कि जब आप प्रोसीजर्स का और पॉलिसीज का भी आगे हम पढ़ेंगे कि गैप एनालिसिस हो रहा होता है, तो फर्म्स ऑडिट फर्म्स भी रिकमेंडेशन दे देती हैं और जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो भी देते हैं। हमने नक्शल में आगे जाके ये देखने की क्या ये रिकमेंडेशंस इतनी है कि इनका कॉस्ट बेनिफिट अगर एनालिसिस किया जाए तो इसका बेनिफिट क्या, तो जो कॉमन प्रिंसिपल है क्या वो इतना है कि हमें प्रॉफिट उससे मतलब कि उसकी जो कॉस्ट है वो कम और उसके जो बेनिफिट है वो एक्सीड करते हैं उसकी कॉस्ट से। ये अगर आप ऑपरेशंस के ऑडिट में जाते हैं तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज की, उसमें जो असेसमेंट वो जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में पहले डिस्कस किया कि उनकी भी असेसमेंट हो जाती है कि ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट हैं, कितने बेहतर हैं, और इनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट का मार्जिन है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी कोई भी ऑपरेशंस है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनकी बेसिकली आप अब जिस तो ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट करने के सिंगल ऑपरेशन यानी कि एक प्रोडक्ट वही बन रही वो जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो। अच्छा, अब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के नॉर्मली जो कस्टमर रेंज है वो भी कम होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि अगर बहुत जैसा हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है एचएमसी, इसका जो कस्टमर है वो सिर्फ एनटीडीसी है पाकिस्तान में और डिस्कोस है। डिस्कोस के अलावा पूरे कंट्री में कोई बंदा इनकी प्रोडक्ट नहीं परचेज करता क्योंकि वो इतने हैवी ट्रांसफार्मर है कि वो किसी के काम के नहीं होते। अब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जब हम उसके पर जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि उनके जितने भी डिविजन्स क्या ऑपरेशनली मतलब कि क्या उनके ऑपरेशंस वायबल हैं। बेसिकली उनके ऑपरेशंस का अपने अप्रेजल करना होता है। फर्ज कर लें कि एक प्रोडक्ट है वो बना रही है, उसको सेल कर उसमें प्रॉफिट है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो हाँ प्रॉफिट है, ठीक है, इसका मतलब कंपनी ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर एक उसका ऑपरेशन फर्स्ट करने आउटसोर्स कर दें और उसको बनाना ही बंद कर दें और वो काम आप बाहर से करवाएं, तो मुमकिन है कि वो प्रोडक्ट कम उस प्रोडक्ट का कंपोनेंट अगर बाहर से बनवाया जाए तो वो शायद ज्यादा आपके लिए फिजिबल हो। तो जब उसके सेगमेंट वाइज अप्रेजल होती है तो उससे ये पता लगता है कि सेगमेंट कौन सा ऐसा है जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है और वो प्रोडक्ट की मेन कॉस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इसी ऑपरेशन को आप आउटसोर्स करें तो ये कॉस्ट इजीली डिक्रीज की जा सकती है। दूसरे कि ऑपरेशन ऑडिट के अंदर दूसरे ऑडिट्स की तरह एक इसके अंदर की रिजेम्बलेंस है कि रिस्क आइडेंटिफाई करना। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे आज भी रिस्क बेस्ड ऑडिट नहीं होता, मतलब वो एक एक वाउचर सारे के सारे चेक हो गए होते हैं वहां पर। तो जो ऑपरेशनल बेस्ड होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, अगर हमने ये देखना कि हर डॉक्यूमेंट के साथ क्या रिस्क अटैच है और ऑपरेशंस के साथ कौन कौन से रिस्क अटैच है, उस रिस्क के मुताबिक फिर आप जाके अपने ऑडिट प्रोसेस डिफाइन करते हैं। लेकिन हम उसको आगे जितने भी फिलहाल ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हो जाए कि ऑपरेशंस का ऑडिट है क्या। डेफिनेटली अगर ये ऑब्जेक्टिव आपको अचीव हो जाएगा तो उसके बेनिफिट्स हैं, आपके जो ऑपरेशंस हैं ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। और खुद बाज इस तरह के एरियाज होते हैं जिनमें मैनेजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व मतलब उतनी डेप्थ में नहीं हो पाती। उसकी वजह एक तो ये होती है कि वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती होती। मिसाल के तौर पर अगर बहुत प्रिसीजन आपको चाहिए तो जितना लेवल ऑफ प्रिसीजन बढ़ता जाएगा वॉल्यूम ऑफ वर्क भी उतना ही बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रिसीजन तो अचीव करें लेकिन आपका वॉल्यूम ऑफ वर्क वो उतना का उतना ही रहे या वो कम हो जाए। प्रिसीजन बढ़ती जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ वर्क भी बढ़ता जाएगा, दोनों में पॉजिटिव है ताल्लुक। तो अब होता ये है कि आपने एक फर्स्ट करने बिजनेस का ऑपरेशन है उसके मतलब प्रिसीजन इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको अचीव होगी। मैनेजमेंट का पर्पस हल हो गया, प्रोडक्ट भी एक ही है, अब लाइन लॉसेस भी वही रहेंगे, रॉ मटेरियल भी एक ही जगह से आना है, कस्टमर भी एक ही। मैं कुछ सिंपल ऑपरेटिंग एग्जांपल कर लेती हूँ।
जब आप इस तरह के सिनेरियो में जाएंगे तो एक दफा तो बहुत ज्यादा एफर्ट करके आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को पास इन्फॉर्मेशन चली भी गई, लेकिन क्या आने वाले वक्त में मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूसली इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जबकि एक दफा आने के बाद उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है? तो अगर तो परफॉर्मेंस को करना हो मैनेज, फिर तो यस जरूरत होती है। और अगर उसकी बेस पर कोई डिसीजन ऐसा करना था जिसके बाद अब सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी, तो फिर मैनेजमेंट के लिए दोबारा उतनी प्रिसीजन और फिर उतनी ही डेप्थ की इंफॉर्मेशन उसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब इतनी डेप्थ में जब इंफॉर्मेशन हमने कैप्चर करनी थी, तो उसको मुख्तलिफ टूल्स हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हरुण साहब ने भी जिक्र आपसे किया था कि एक अटैचमेंट है साहब, वो बेसिकली RFIDs के ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। वो उस मशीन की पिक्चर है, जहाँ पे तो RFIDs चल रहे हैं हमको तो बेहतर आइडिया होगा, जहाँ पे नहीं है उनके लिए इंटरेस्टिंग भी है। तो वो सिर्फ पिक्चर थी उसकी। अब ऑपरेशन नोट में थे तो आप पहले तो अपनी प्रिपरेशन करेंगे। जिस ऑपरेशन का आपने ऑडिट करना है उसका आप सर्वे अपने पहले कर लेते हैं। सर्वे करने से आपको अंदाजा हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना होगा, काम कितना फैला हुआ है, और इसमें इश्यूज जो अपरेंटली जो आपको आ रहे हैं नजर, वो क्या है, और उनके अगेंस्ट जो सिस्टम जो डेवलप हुआ है वो क्या है। बेसिकली प्रोडक्शन का या ऑपरेशन का जो ऑडिट होता है ना, वहाँ पे जो कंट्रोल जो डिजाइन किए हुए होते हैं वो भी प्रोडक्शन या ऑपरेशन के ही लोगों ने किए होते हैं। क्योंकि इंटरनल ऑडिट या फाइनेंस के लोग अपने अपने ही डिपार्टमेंट के कंट्रोल को बना रहे होते हैं, तो इसलिए वो वहां तक उनकी रसाई नहीं होती है, वहां तक वो मतलब कि अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करते हैं। तो प्रोडक्शन या फील्ड से रेलेवेंट जितने भी आपको कंट्रोल्स आएंगे नजर, वो नॉर्मली उन लोगों के या उन डिपार्टमेंट्स के अपने ही बनाए हुए होते हैं। ठीक होंगे बहुत सारे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। शुगर इंडस्ट्री में जो केन है ना, ये कई किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें से परचेज हो रहा होता है। अब जो तो बंदा करीब से आ जाता है शुगर केन या जो गन्ना है वो लेकर, उसको थोड़ा फ्रेट मिलता है, जो दूर से आता है उसको ज्यादा फ्रेट मिल जाता है। तो पहले शुगर मिल्स वाले क्या करते थे कि उन्होंने मुख्तलिफ चेक पोस्ट बनाई होती थी। जैसे अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर से लेके आ रहा है, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में शायद वो 3 या 4 चेक पोस्ट अपनी बना देंगे। अब वो ट्रॉली या वो ट्रक जिस पे वो शुगर केन आ रहा है, वो जब तक आएगा ना फैक्ट्री के गेट तक, तो वो 4 जगहों से चेक हो गया, उस पर स्टैंप लग जाती। अब ये इंश्योर हो जाता है कि हाँ ये बंदा फलां जगह से ही आ रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग कोलिजन के शिकार अमूमन नहीं होते। लेकिन जहाँ पर ह्यूमन है, नेचर हो, जहाँ पे कंट्रोल्स वीक हो, वहाँ पर बीमारी भी साथ के साथ चलती है। तो लोगों ने वो स्टैम्प खुद ही बनाना शुरू कर दी, खुद बना के लिया, कुछ लोगों को साथ मिला लिया। अब उन्होंने इससे एक स्टेप आगे चले गए, जिधर से भी केन होता है ना लोड, उसकी फोटो खिंच जाती है। जैसे वो फोटो कैप्चर करते हैं ना, तो जिस ऐप में अपलोड होती है वो एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं कि ये फलां लोकेशन से ये केन अब आ रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता वो फ्रेट लेने के लिए 10 किलोमीटर पहले जाएगा दूर, वहां से फिर वापस आए और यहाँ से करीब से ही केन को लोड करके तो फिर फैक्ट्री लेकर आए। तो जो फ्रेट उसे लेना था वो वैसे ही कवर हो जाएगा। तो जितनी हमें प्रिसीजन आगे जाकर देखेंगे ऑपरेशन ऑडिट्स में चाहिए, वो थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स अचीव नहीं हो सकती। और जितनी एफिशिएंसी चाहिए होती है वो भी नहीं अचीव हो सकती। उसके लिए आपको जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो तब जाकर आप ऑपरेशनल वीकनेसेस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि मैंने वो शुरू में कहा था कि मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है, क्या वो अपने ऑपरेशंस को ऑडिट करवाना भी चाहते हैं कि नहीं। अगर आप देखें ना कि होटल इंडस्ट्री, वहां पर हर एक होटल की ना जो बड़े अच्छे अच्छे होटल की एक यूनिक होगी स्पेशलिटी। कोई चावल बहुत अच्छे बना रहे हैं, कोई दाल बहुत अच्छी बना रहे हैं, कोई क्या बहुत अच्छा बनाते हैं। अब जब ऑपरेशन ऑडिट में आता है उसको कहते हैं कि अब हमें बताया आपकी रेसिपी, आप कौन सी चीज कितनी बीच में डाल रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हो जाती है एकदम से, वो अपना शेयर ही नहीं करेंगे। तो एक इनहेरेंट लिमिटेशन खड़ी हो जाएगी। तो आप ऑपरेशंस का ऑडिट करते हुए भी
पूरी इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं ले पाते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको 500 केवीए के टावर की बात करूं जो पाकिस्तान में बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है 500 केवीए से ऊपर की नहीं, मैक्सिमम इनके ऊपर जो लोड 500 केवीए। अच्छा 500 केवीए के जो पोल है, जो टावर है, वो बनाना भी काफी कॉम्प्लेक्स है। अब उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो भी एक यूं कह लें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कंपनी की, और वो आप मतलब कि उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने ऑपरेशंस को ऑडिट करने के लिए आपने ये पोल एक बनाया था, इसको बिजली का खंभा कहते हैं, और इसमें कितने पैनल लगने थे, कितने लगाए आपने, उतनी साइज के लगाए, वो गैल्वेनाइज प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, उस पर कितनी माइक्रोन्स की कोटिंग चाहिए थी, आपने कितनी की, माइक्रोन्स मीटर का है साथ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जो जो टेक्निकलिटी में जाएंगे तो बाद दफा इस तरह की हर्डल आ जाती कि वो आप कॉन्फिडेंशियलिटी को टच करना शुरू हो जाती और उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी वहाँ पे जो ऑफिसर उनके अपने एक चेक एंड बैलेंस होते हैं। जैसे कहेंगे ये मैप होता है जिसकी ड्राइंग्स होती है, वो हमने ताले में रखी हुई, मैंने मुझे दिखाया, ये आपने क्या करनी है। अब जब तक कि मैनेजमेंट ऊपर से टॉप से अपनी जिसे कहना चाहिए कि विलिंगनेस ना शो करे कि वो ऑपरेशंस का ऑडिट ठीक तरह से कराना चाहती है, तो उस वक्त तक इसका ऑडिट ठीक तरह से नहीं हो सकता। और अगर कोई भी बिजनेस का एस्पेक्ट रह जाता है तो वो डेफिनेटली ना वो कैप्चर होगा, ना उसके ऊपर कोई डिबेट चलेगी, ना वहाँ पर कोई मतलब कोई आप पॉजिटिव चीज को कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अच्छा अब वेट फॉर मिनट प्लीज। अच्छा, जितनी ज्यादा किसी बिजनेस के अंदर मतलब कहने की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने का क्वेश्चन होता है ना, ये डिपेंड करता है कि उसका पोटेंशियल कितना है, उसके ऑपरेशंस के अंदर लूप होल्स कितने हैं, और उसके बाद ही हम इसको आगे लेके चल सकते हैं कि कितना बेहतर तरीके से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि ऑपरेशन ऑडिट्स में जब वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती है तो उन वीकनेसेस के साथ कोई ना कोई लॉसेस ऐसे अटैच होते हैं जो कभी माजी में हुई होती हैं, और जो उस तरह से या उतने नहीं रिपोर्ट हुए होते जिस तरह से और जितना उन्हें रिपोर्ट होना चाहिए था। तो ऑपरेशंस ऑडिट में आप जो प्रिसीजन की तरफ जाते हैं तो जो ऑपरेशनल जो जो फील्ड स्टाफ है उसके लिए बात आप एक थ्रेट बन जाती है कि यार ये बंदा कहाँ से आ गया, ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने लगे। अच्छा अब बात भले आप किसी की गलती ना भी पकड़ रहे हैं तो बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है। मैं आगे जाके अपनी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करना था और कितने फिर पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्क नहीं, गैप भी नजर आता है आपको। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वैल्यू एडेड प्लान है या नहीं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बात फिर भी जितनी प्रोसीजर में जाकर आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उस प्रोसीजर की अपनी एक कॉस्ट है और उस कॉस्ट उस बेनिफिट का फिर कंपैरिजन है। तो अब उस बिजनेस जो पोटेंशियल एरिया बिजनेस का जहाँ पर आपको लगता है कि ये इसको हम कर सकते हैं इम्प्रूव, तो अगर आपके साथ टॉप मैनेजमेंट है और उनकी कमिटमेंट है फिर तो आप ऑपरेशनल ऑडिट्स में हाथ डाल दें, वरना फिर ये होगा कि आप उसको उतनी डेप्थ से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसमें मैनेजमेंट की फिलॉसफी की कमिटमेंट का बड़ा रोल है इसके अंदर। हम या तो नॉर्मली करते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट जो कि अच्छी कंपनीज में होता है, और इसमें भी आगे जाके दो हैं। पहले प्री और पोस्ट ऑडिट को दूसरा डिस्कस कर लें जो कन्वेंशनल हमारे यहाँ चलता है। प्री ऑडिट वहां पे नॉर्मली किया जाता है जहाँ पर फाइनेंस या अकाउंट्स का फंक्शन मेरी अपनी राय है कि जहाँ पे इतना मजबूत नहीं होता। अब होता ये है अकाउंट्स और फाइनेंस वालों को इस बात का डर होता है कि कहीं का कोई गलती ना हमसे हो तो वो सेठ साहब को ये कहते थे कि जी आप पहले इसको ऑडिट करें फिर हम भी इसको देखेंगे। ठीक है ये चीज कि चलो किस पहले आइडेंटिफाई के बजाय कि पेमेंट हो जाए, वो डिसीजन हो जाए, उसके बाद तो गलत होगी,
और फिर ऑडिट वाले भी लकीर पीट रहे हैं, अपरेंटली यस, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क एसोसिएटेड है। अगर फर्स्ट कर लें कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ और मैंने प्री ऑडिट में साइन कर दी, बाद में मुझे पता लगता है मैं तो गलत साइन कर बैठा हूँ और बाकियों को भी पता नहीं लगा, तो शायद मैं भी सोचूंगी यार मुझे अपनी जॉब बचानी है, इसलिए बेहतर चुप कर दूँ। अगर कभी किसी को पता लगा तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये मैंने देख लिया था, या इसको मैं श्योर है तो फिर टिल्ट कर लूंगा, नहीं तो ना से। अच्छा वो बात इसलिए भी नहीं मान लेती क्योंकि सबने साइन ऊपर की होती। पोस्ट ऑडिट कंपैरेटिवली इसलिए ये सेफर है कि इसके अंदर जो इंटरनल ऑडिट है वो उसकी इंडिपेंडेंस का जो एलिमेंट है वो ज्यादा है बनिस्बत प्री ऑडिट के। अच्छा अब हम कहते हैं कि जी जो एक रिस्क बेस्ड ऑडिट है इसमें आप पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर आप उसकी उस रिस्क के क्रिस्टलाइज होने की जो लाइकलीहुड है उसको उसको चेक करते हैं कि जी कितना चांस है कि ये रिस्क ट्रिगर हो जाएगा, और उसके बाद उस रिस्की एरिया के ऊपर जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उनका एनालिसिस होता है, क्या वो सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है, ऑपरेशनल है, प्रॉपर्ली हो चुके हैं डिजाइन, इफ यस तो फिर ठीक है, नहीं तो जो आपने रिकमेंडेशन देंगे उसके ऊपर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपना कर लें कि कितनी बेहतर है। सेकंड ये है कि प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, जैसे हमने पहले कभी एक वॉचर उठा लिया लगे इश्यूएंस उठा ली, स्टॉक एडजस्टमेंट्स ले ली, रिसीट एडजस्टमेंट ले ली, इशू एडजस्टमेंट उठा ली और उनको एक एक को चेक करते हैं। अच्छा अब जब ये डॉक्यूमेंट बेस्ड टेस्टिंग पे चले जाते हैं तो नॉर्मली उसमें कन्वेंशनल एलिमेंट ये भी आ जाता है, ये साइन हो गए थे नहीं हुए थे, डेट ही डल गई नहीं डल गई, पोस्ट प्रॉपर टाइम की हो गई नहीं हुई। फिर ऑडिट जो है ना वो एक बड़ा हेक्टिक और बेसिक टाइप का हो गया था। ठीक है ये चीजें अहम है और बड़ी जरूरी है, लेकिन क्वालिफाइड स्टाफ के लिए नहीं। जो स्टाफ आपका फील्ड में काम कर रहा है अगर वो कंपैरेटिवली कम क्वालिफाइड है तो ये उनके ही करने वाले काम होते हैं। एक ये कि परफॉर्मेंस बेस्ड ड्रिवन, परफॉर्मेंस ड्रिवन ऑपरेशनल ऑडिट हो कि आप ये एक्सप्लेन करें कि बेंचमार्क ऑर्गेनाइजेशन में अगर पहले से है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करें कि बेंचमार्क होगा क्या। फिर आप ये देखें कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बेंचमार्क से कितनी डेविएट कर रही है, उसके करीब है नहीं है, और फिर क्या अगर परफॉर्मेंस नहीं अचीव हो रही तो क्या ऐसे इंडिकेटर या ऐसे क्राइटेरिया बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन हाइड या कंसील भी करना चाहे तो तब भी ना कर सके और वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक आ जाए। उसके बाद है कि ठीक है आप जो भी उसके रिजल्ट आएंगे सो आएंगे। अच्छा ये अल्फा बीटा आर स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम से टर्म है, ये बाकी भी आम ही है लेकिन इनको लिखा सिर्फ इसलिए था कि बात का जब आप ऑपरेशनल ऑडिट्स की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें कोई लव इस तरह का आ जाता है, या जब आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो बहुत लंबी बात लिखने की बजाय अगर आप अल्फा रिस्क लिखते हैं तो समझ आ जाएगी कि ठीक है ये कहना चाह रहा हूँ। होता है कि आपका किसी आपने कोई बिजनेस का सेगमेंट चेक किया और वहां पे आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, उससे रेलेवेंट आपने कंट्रोल्स भी देखे और ओवरऑल आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये ठीक है, ये बिजनेस सेगमेंट इसके जो एसोसिएटेड जो इसके साथ कंट्रोल्स हैं वो कितने ठीक है, तो उसको अल्फा में बता देते हैं। बीटा ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करेंगे उसमें गलती हो जाएगी। अच्छा आज स्पीड ये था कि प्राइसेस में किसी कितना इम्पैक्ट आएगा, तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो बेंचमार्क सेट किया हुआ है उससे कितना डेविएट होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें पता है कि वो ठीक है एक स्टैंडर्ड है, उससे कोई चीज कितने डेविएट हो रही है, कितनी डेबिट होकर फिर वो कितने परसेंट जो रिस्क है वो उसके रिस्क एरिया में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस में ये अल्फा बीटा आर स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह के टर्म चलते हैं। बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड सेट हुए होते हैं और फिर वो उसके मुताबिक अपने चल रहे होते हैं। अच्छा टूल्स तो मुख्तलिफ हैं, एक CMM है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है या उसका रिविजन है। अब ये कहते हैं कि जनाब क्लियरली आइडेंटिफाई कर लें कि उसको पढ़ता हूं उसको सुने कि द प्रोसेस मॉडल दैट प्रोवाइड्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड डू टू प्रमोट बिहेवियर्स दैट लीड टू इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। अब इन्होंने पहले भी डिस्कस किया कि मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, कि कितना ज्यादा वो एक्सेस आपको देते हैं पेनिट्रेट करने की,
अगर तो हर चीज ओपन है तो फिर तो मैदान खुला है, आप इसको आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से उसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसकी एक्सेलेंस को अचीव कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर ये CMMI और बाकी चीजें भी अपनी जगह पर हैं। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग डेफिनेटली है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हाई रिस्क एक्टिविटीज है वो कौन सी हैं। डाटा एनालिसिस के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, और जिस तरह से आर लैंग्वेज है या पाइथन है, बहुत ज़्यादा डाटा है, तो उसमें से आप निकाल कर इसके ऊपर एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने एक नए टॉपिक पर, जो RFIDs है। ये क्या है? RFID होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट मैं टेक्सटाइल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। स्टार्ट टेक्सटाइल से करता, अब दो तीन मुख्तलिफ बिजनेसेस की एग्जांपल लेते हैं। वो टेक्सटाइल यहाँ पर पीस रेट के ऊपर पे होता है, उधर काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एक टेक्सटाइल है जिसने 1 लाख जो है ना वो शर्ट्स, वो उसने 1 महीने में या 5 लाख उसने शर्ट्स तैयार कर दी। और पाकिस्तान में अलहमदुलिल्लाह यूनिट में इनकी 5-5 लाख पीस या 5-5 लाख शर्टें वो एक दिन में स्टिच कर देते हैं। जब इतने मैसिव ऑपरेशंस होते हैं, अब एक फ्लोर के ऊपर 8 या 5,000-6,000 बंदा काम कर रहे हैं, और बेतहाशा मुख्तलिफ तरह के वो मतलब ट्रैक सूट्स के शर्ट्स के पैंट्स अंदर प्रोडक्शन लाइन से अंदर स्टिच हो रही हैं। अच्छा, अब फर्स्ट उसमें टेक्सटाइल में जिनको ताल्लुक टेक्सटाइल से पता होगा कि वो क्या करते हैं कि फर्स्ट कहने की शर्ट में बनना है या स्कर्फ में बनना है, तो 100, 200 या 500 कप वो इकट्ठे करते हैं और वो लाइन में दे देते हैं लोगों स्टिच करने के लिए। अब एक बंदे ने इसको स्टिच किया, अगले बंदे ने जो बैठा हुआ लाइन में, उसने ये साथ जो बाजू उसको स्टिच करना है। लेकिन मल्टीपल कलर्स के लॉट्स चल रही हैं, और क्या आप बाय द एंड ऑफ द डे 5 लाख शर्ट्स के मल्टीपल जो कंपोनेंट्स हैं जिनको पैनल्स कहते हैं, उनको कौन ठहर के वहां पे काउंट करेगा? तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती कि आप पीस रेट के ऊपर पैसे देंगे लोगों को कि आपने आगे इतने पीस स्टिच किए, आपने इतने पीस स्टिच किए, और आप उसको काउंट करके फिर पेमेंट करें। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब होता क्या है, जो जहां पर RFID नहीं है वहां पर इसका एरर तो होता है मार्जिन। हम लोग को कई दफा जाके देखा कि पैनल गिनते तो कुछ और होते थे, तो 2, 4, 5, 10 का फर्क आ जाता था। अच्छा, अब वो उनके पास जवाब ही होता था कि जी अब मैं हर चीज को नहीं काउंट कर सकता, जो कि ठीक था। लेकिन एट द अदर वे राउंड ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है कि जो अच्छे लगते हैं उनके ज्यादा पीस लिख देंगे, जो बुरे लगते हैं उनके कम कर देंगे, तो फेवरेटिज्म भी चल रही है। अब ये तो है छोटे इश्यूज। इससे जो बड़े इशू हैं, जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हिट करते हैं, वो ये करते हैं कि क्या जितनी देर में स्टिच होना चाहिए था इतनी देर में स्टिच हुआ। फर्स्ट कर ले, एक शर्ट है, उसका स्टैंडर्ड टाइम है SMV जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू पर मिनट, ठीक 16 मिनट्स में एक शर्ट ने स्टिच होना है, और उसके ऊपर 52 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अब 18 मिनट है और 52 ऑपरेशंस हैं, तो कई ऑपरेशंस होते हैं जो पर सेकंड के हिसाब से हम मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इशू क्या हुआ कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन जिसने 7 सेकंड में परफॉर्म हुआ, क्या वो 7 सेकंड में परफॉर्म हो गया? परफॉर्म तो चलो ठीक हुआ, फर्स्ट कर आपने काउंट भी कर लिया, वो सारे सारे वो ठीक थे, लेकिन उसने टाइम ज्यादा ले लिया। ज्यादा टाइम का मतलब ये है कि इनएफिशिएंसी भी है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी ऊपर जा रही है, क्योंकि जो मशीन्स है वो मतलब सोलर सिस्टम पे तो नहीं चल रही, इलेक्ट्रिसिटी पर। टाइम भी वेस्ट हुआ, रिसोर्सेज भी एक्स्ट्रा कंज्यूम हो गए, ओवरहेड कॉस्ट भी ऊपर चली गई, और प्रोडक्शन भी मतलब कि उतनी आई जितनी कि उन्होंने कमिट की थी। मैं आपको 50 पीस स्टिच करके दे दूंगा, उसने 50 ही दिए, लेकिन एक्चुअली अगर RFIDs होते तो आपको पता चल सकता था कि कितना टाइम ऐसा था जो उसने प्रोडक्शन के लिए जिसमें इसने प्रोडक्शन ही नहीं की। तो क्या होता है कि वो पीस रख के बैठ रहेंगे, जब देखेंगे उधर देखेंगे, गपशप लगाते रहेंगे, या लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, या एक स्टैंडर्ड सेट हो जाती है लाइन लॉसेस इतने ही। अच्छा, क्या एक्चुअली उतने ही होते हैं, या क्या इनको कम किया जा सकता था? इसी तरह से कई इश्यूज होते हैं जो RFIDs के बाद खत्म हो जाते हैं। अच्छा, होता क्या है, RFID की मैं एग्जांपल दे देता हूँ।
कि जैसे फर्स्ट करने की एक टेबल है और इस पर सिलाई मशीन है जिसने स्टिच करना है गारमेंट को। अच्छा, अब जब गारमेंट की स्टिचिंग स्टार्ट हो जाती है तो इस मशीन के लिए मेरे पास एक कार्ड होता है। हर वर्कर के पास जितने भी लोग लाइन में बैठे होंगे उनके पास एक एक कार्ड होता है। जैसे ही मुझे मेरे हिस्से का काम मिलेगा स्टिच करने के लिए तो मैं अपने कार्ड को स्कैन कर दूंगा। मैंने काम अपना खत्म किया, कार्ड को फिर स्कैन कर दिया और आगे वाले साहब को दे दिया। उन्होंने अपना काम खत्म किया, उन्होंने भी कार्ड को स्कैन कर दिया। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। अब वो हर बंदे के पास एक कार्ड है, हर एक अपने अपने मशीन जब अपना कार्ड स्वाइप करता जा रहा है। जब एंड होता है तो फर्स्ट करने आखिर में पता ये लगा कि जी दो कार्ड थे, एक हो गया, एक रह गया। अब उस पीस ने दोबारा प्रोडक्शन लाइन के अंदर आ जाना। अब जब प्रोडक्शन लाइन में दोबारा जाएगा तो उसमें रीवर्क होना है। रीवर्क के लिए अलग से कार्ड इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे अब रीवर्क का कार्ड लगाते हैं तो अब वो नॉर्मल जो प्रोडक्शन है वो उसको नहीं कैलकुलेट करेगा, वो जो रीवर्क का जो एडिशनल टाइम है वो उसको मेजर करना शुरू कर देगा। तो जब जैसे ही आपका डे एंड आता है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन कार्ड के थ्रू कैप्चर हुई होती है उस डिवाइस में वो सारी की सारी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये प्रोग्राम कार्ड होते हैं। हर लॉट के लिए कार्ड को दोबारा से प्रोग्राम किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन आप इससे उठा सकते हैं या इन्फॉर्मेशन जो आप इससे एक्सट्रैक्ट हो जाती है, कितने पीस स्टिच हुए, कितनी देर में स्टिच हुए और किस टाइम पे इसने काम स्टार्ट किया, किस टाइम पे इसने खत्म कर दिया, कितनी लॉट्स इसने स्टिच किए और उस दौरान इसने कितना अपना टाइम कंज्यूम किया। अच्छा, अब वर्किंग प्रोसेस आप देखें कि इसकी वजह से बड़ा एक्यूरेटली कैलकुलेट हो जाता है आपका। पीस रेट का मसला आपका खत्म हो जाता है। आपके ओवरहेड्स कैलकुलेट होने शुरू हो जाते हैं प्रॉपरली और टाइमली। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आना शुरू हो जाती है। अदरवाइज आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आती हैं और अगर आती है तो उनकी एक्यूरेसी का वो स्टैंडर्ड नहीं होता। अच्छा, अब इसी तरीके से ये रिटेल इंडस्ट्री के अंदर भी बड़े हेल्पफुल है अगर हम RFIDs वहाँ पे इस्तेमाल करें। जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं उनके लिए भी इनका बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि RFIDs थोड़ी सी तो मेथडोलॉजी मैंने आपको बता दी कैसे काम करता है, थोड़ी सी डेवलपमेंट पे जाके आगे देख लेते हैं। तो बेसिकली जैसे आपका ATM कार्ड होता है ना, एग्जैक्टली ये उसी तरह की कार्ड होता है। RFIDs की मशीन कैसे होती है हम आगे देख लेते हैं। मल्टीपल देखिए होते हैं टूल्स। और हम जब उन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं तो एफिशिएंसी तभी अचीव हो सकती है, वरना एफिशिएंसी को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो लोग इस टेक्सटाइल के साथ रिलेटेड हैं उनको तो हम कह सकते हैं क्योंकि होती है जजमेंट जो कि मतलब मोर और लेस शायद उसकी जजमेंट ठीक हो, लेकिन जजमेंटल वर्क ऑपरेशंस की प्रिसीजन के साथ एफिशिएंसी को गेज करने में कोई हेल्पफुल नहीं होता। जजमेंट ये तो करवा सकती है कि जी इतनी देर में इतना थोड़ा काम हो जाना चाहिए था, लेकिन इनमें कौन सा वर्कर एफिशिएंट है कौन सा इनएफिशिएंट है। फर्स्ट कर लें जब लाइन एंड हुई पूरे दिन में उतनी शर्ट स्टिच हुई, लेकिन कोई एक बंदा बीच में या कोई दो बंदे इस तरह के थे जो कि एफिशिएंट नहीं थे, इससे एफिशिएंसी की एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाती है। अब RFIDs जो हैं इनके साथ टैग होते हैं, टैग रीडर होता है, एंटेना है, कंप्यूटर इस्तेमाल होना होता है। और अब मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल RFIDs इन्होंने $400 मिलियन की सेविंग की थी। इसका रेफरेंस बस मैं मुझे लिखना याद नहीं रहा, मैं बुक स्टडी कर रहा था उसमें मैंने ये पढ़ा था। तो होता क्या कि आपकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो इसके थ्रू फेच करना काफी आसान हो जाते हैं। और हम 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, तो आप क्वेश्चन इस हवाले से जरा देख लें, उस वक्त हम इसको यहाँ से दोबारा शुरू कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।
जी। तो अब बात है कि टॉपिक तो है बेसिकली काफ़ी वसी और 2 घंटे वैसे तो डेफिनेटली से कम से कम आइडिया लेना होता है और जिनको RFIDs का नहीं था आइडिया तो उनको भी इसका बताना था कि भाई ये भी एक है अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेहतर है कि जो रेलेवेंट जो बुक्स हैं जो ऑपरेशनल ऑडिट्स पर हैं वो आपको रेफरेंसेस के भेज दूंगा वो स्टडी करें उसको भी काफ़ी बेहतर उसमें स्टफ मिल जाता है कि आप अपने ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अच्छा अब एक सवाल ये भी आता है कि जी बारकोड भी तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आप RFIDs को क्यों प्रेफर करते हैं? बारकोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है जैसे कि बैक वक्त मल्टीपल स्कैनिंग बारकोड में नहीं हो सकती। मिसाल के आपके जी अगर हर एक स्टेप पे ही आना है डिवाइस में, जब आगे जाके डिवाइस में देख भी लेंगे इस तरह की होती, तो फिर हम RFIDs को इस्तेमाल करने के लिए जो कि एक महंगा तरीकेकार है उसके लिए वो स्कैनिंग मशीन को ना लगा जो वो जो रिटेल स्टोर में स्कैनर होते हैं के सामने से गुजारते हैं जब प्रोडक्ट को स्कैन होती जाएगी। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मल्टीपल स्कैनिंग बैक वक्त करनी पड़े तो बारकोड स्कैनर वो उसके ऑफर नहीं आपको करता है। RFIDs जो है कि मल्टीपल कैप्चर कर सकते होते हैं कोड्स वगैरह ना, उसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन जो आपको लाइव चाहिए और मल्टीपल जगहों से चाहिए और इकट्ठी चाहिए, जैसे आपकी प्रोडक्शन लाइंस हैं वहां पर हो सकता है कि एक ही सिमिलर प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, तो वो फिर यहाँ पर जो आपका जो स्कैनिंग सिस्टम है वो नहीं फिर काम करता। और बारकोड नॉर्मली सेंसिटिव होते हैं, बड़ा क्लीन सरफेस चाहिए होता है, बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जबकि RFID जो रग एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी काम कर जाता है। अच्छा अब सूरत बात कभी बन जाती है कि मैं आपको पहले उसकी आई गारमेंट बेसिकली सॉफ्टवेयर था आई गारमेंट जो कि काफी अच्छे रेनाउंड सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है। हारून साहब ने शुरू में शायद आपको बताया कि ये हैंड आउट्स हैं, मैं असल में स्लाइड्स बनाता हूँ इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता तो ये मैंने उसको लगा दिया था लिंक। वो हाइपरलिंक होने में मुझे लगा कि शायद इसमें कोई केस स्टडी है, ये बेसिकली उस डिवाइस की पिक्चर थी। लेट मी चेक इट। अच्छा मैं इसको हाइपरलिंक के भी नहीं काम कर रहा, आपको दोबारा भी थोड़ी देर में इसको एक्टिव कर देती हूँ। लेकिन इसके अंदर ये जरूरी है कि जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं फ्लोर के ऊपर तो इसको आप टाइमली जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही होती है उसको आपके पास एक और सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलती है उस सॉफ्टवेयर में चली जाती है जहाँ से आगे आपकी शीटें जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उससे बन जाती है। इसकी दूसरी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि जैसे वो थंब इम्प्रेशन वाली डिवाइसेस होती हैं कि उसने इम्प्रेशन से वो ले ली अटेंडेंस, और अगर तो वो इंटीग्रेटेड आपके पेरोल से तो ठीक है, नहीं तो आप यूएसबी को डाटा लेती हैं और फिर जाके अपने सॉफ्टवेयर में उसको अपलोड कर देते हैं। RFIDs भी आपके जो इसका एक अलग सॉफ्टवेयर अलग डिवाइसेस होती हैं वो आपके प्रोडक्शन मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं और इसके इंटीग्रेशन के बाद फिर इसने वो डाटा वहां से फेच करना होता है। अच्छा अब मुझे ये था कि कोई क्वेश्चन अगर किसी के अब तक आए। जी जी हमारे पास काफी क्वेश्चन जी हैं। क्वेश्चन पूछिए। Farhan Zaka has asked how finance people can do operational audit of technical departments. ये भी जब आपसे केस स्टडी डिस्कस करूंगा ना तो फिर हम इसको देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा आपसे भी डिस्कस कर भी लेता हूँ उसमें से इनका जो क्वेश्चन को नोट करके मैं उसको पेंडिंग पे थोड़ा सा करना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Hamza Saeed Ahmed has asked, is alpha beta
Can alpha beta be categorized as audit risk with its components? ये ड्राइव तो वहीं से ही होगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्यूमुलेटिवली आपने देना होता है, जो मुझे आपके क्वेश्चन से आई है बात समझ। और अगर ये आपको रेलेवेंट आंसर नहीं लगता तो फिर आप मुझे ईमेल कर देना, थोड़ी तफसील से कर दीजिए, मैं कर मुमकिन है कि आपको इससे बेहतर जवाब देने की पोजीशन में आ जाऊं। Asad Afridi has asked, is the webinar limited to RFID function for operational audit? नहीं, यूज तक लिमिटेड नहीं है। बेसिकली बात ये कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कन्वेंशनल तरीके से गेज करना और उसको किसी मॉडर्नाइज वे में गेज करना, ये सब एक आइडिया देना था कि मॉडर्नाइज वे में भी कैप्चर होते हैं और वही सही तरीका है। अगर आप ऑपरेशनल ऑडिट्स को, बाद ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस इतने फास्ट होते हैं जैसे एफएमसीजी में, तो उधर आप इस तरह के मैकेनिज्म को बिल्डअप किए बगैर एफिशिएंसी को या ऑपरेशनल ऑडिट्स को परफॉर्म नहीं कर सकते, लिमिटेशंस हैं। और ये क्योंकि यूरोप में तो अर्ली 60s से ही मतलब चल रही है और अभी भी ये चल रही है। हमारे यहाँ शायद पाकिस्तान में गिनी चुनी इंडस्ट्रीज होंगी जहाँ पे आरएफआईडी इस्तेमाल होता है। तो आरएफआईडी को इस वक्त डिस्कस करना इसलिए जरूरी था ताकि ये पता लगे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए ये टूल भी अवेलेबल है। Irfan Mustafa has asked how many organizations are using RFIDs in Pakistan. I have not seen anyone using RFIDs. Is that too expensive? एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ इस्तेमाल ना होने की कुछ है। देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, उसकी जरूरत नहीं है। उसके लिए कि अगर उनके प्रोडक्शन के जो लोग हैं उनके अपनी होती है जजमेंट के लिए हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी देर में हो जानी है, इतना लॉस हो जाना है, इतना प्रॉफिट हो जाना है। अब वो लोग जो 15-20 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, उनकी जजमेंट कंपैरेटिवली काफी आपके गले के मैच्योर हो चुकी होती है। अच्छा, अगर आप उसमें भी जाके ऑडिट करें ऑपरेशंस का भी, तो उसमें जो एफिशिएंसी का जो होगा ना मार्जिन, वो इतना नहीं फिर निकलता। आरएफआईडीज उन एंटिटीज के लिए है जिनका बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जिसमें कहना कि जैसे पाकिस्तान में मसूर टेक्सटाइल है और सके स्टाइल टेक्सटाइल और सके बड़े बड़े यूनिट सफाई है, निशात है, इनमें कुछ में लगा हुआ। अब जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस, एक प्रोडक्ट को बनाने का टेन्योर 15-16 वो मिनट और 5 से 6 लाख उसके यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और 8-10 हज़ार लोग उसको बना रहे हैं, तो उधर आप हाथों से या रजिस्टर से या इवन एक्सेल से वो चीजें नहीं मेंटेन हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल सिर्फ ये होगा कि आप क्वांटिटी कैप्चर कर लेंगे, उसको कोई वैल्यू भी दे देंगे, लेकिन जो उसकी एफिशिएंसी है ना, वो नहीं गेज इस तरह से हो पाती। एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन बात है कि है सिर्फ वो एंटिटीज की जो काफी बड़ी है। और इसके साथ मैंने आपको शुरू किया कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट्स और ऑपरेशनल जो थ्रेट्स हैं ना, वो भी साथ इन्वॉल्व होती हैं कि क्या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो इसको चलने देंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप किसी भी सरकारी इदारे में डिवाइस जाके थंब इम्प्रेशन के लगा लें, एजुकेशन में तो खैर चल रही है और भी बहुत सारी जगहों पर शायद होगा, लेकिन जो थोड़ी जरा पुरानी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये इस तरह की चीजें इटसेल्फ एक थ्रेट क्रिएट कर देती हैं। जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लोग खुद ही उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटरेस्ट है अब वो उसके ऊपर मतलब कि चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता आरएफआईडी जैसे बाजों को इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो जहाँ पर पता है कॉस्ट इतनी को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डेडिकेशन और कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ये प्रायोरिटी है। अगर ये होगी तो फिर ये चीजें आगे चल सकेंगी। How finance itself can improve operational financial areas? ओके, इसलिए एक छोटा सा मशवरा आपको दे देता हूँ। हम जब नॉर्मली फाइनेंस में क्लोजिंग करते हैं तो होता है कि जब आ गया फर्स्ट करने के मंथ एंड,
वो हमने देखना शुरू कर दिया, डेली सारे सारे पोस्ट हो गए, नहीं वो बैंक पेमेंट सारी हो गई, कोई वॉचर हमारा रह तो नहीं है, एक्यूरेटली पोस्टिंग हो रही है, टाइमली पोस्टिंग हो रही है, ठीक हैंड में पोस्टिंग हो रही है। उसके बाद जो प्रोविजंस जो बनानी थी, उनकी जो जजमेंट एक्सरसाइज करनी थी, वो पिछली जजमेंट के साथ कितनी कंपैटिबल है आपकी, इस तरह के सारे आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि हमारी जो क्लोजिंग की डेट थी वो 12, 13, 15 तक चली जाती थी। फिर हमने कुछ सोचा कि यार हम बजाय ये कि इंतजार करें कि बिल कब आने हैं, ये कब आना है, वो कब आना है, सुबह से लेके हम एक एस्टिमेटेड पेमेंट डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर भी वो डेट चले कम तो हुई, लेकिन फिर भी 7-8 तारीख हो जाती है। उसके बाद फिर ये डिसीजन हुआ कि एक सॉफ्ट क्लोजिंग की जाए। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्ट क्लोजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक अपनी डेट डिसाइड कीजिए, हमने 25 तारीख को क्लोजिंग कर देनी है। अब आपके मैक्सिमम जितने भी डॉक्यूमेंट आपके ईआरपी में ओपन पड़े वो सारे क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी टारगेट डेट अब 30 नहीं बल्कि 25 है। अब 25 तारीख तक पहुंचने के बाद जब आप अपनी सॉफ्ट क्लोजिंग करते हैं तो आपकी क्लोजिंग 23 या 22 तारीख की शुरू हो जाती है। उसके बाद 25 ऑफ दैट मंथ जो होगा वो आपकी जब सॉफ्ट क्लोजिंग होगी, आप वहां पर चेक करेंगे कि आप कहाँ पर ठहरे हो। फिर 5-6 दिन का मजीद गैप होता है आपके पास। फिर उस गैप में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा ये एरिया वीक है, तो एक पहले सॉफ्ट क्लोजिंग करें, फिर प्रॉपर क्लोजिंग अपनी करें। इससे काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन काफी सारी ईआरपी जो लोकल बनते हैं उसमें ओपन डॉक्यूमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओपन पड़ा वो आपको मैनुअली जाके देखना पड़ता है, कितने मेरे पीओ ओपन है, कितने मैंने कैंसिल कर देने, नए पीओ बनाने हैं, नहीं बनाने। अब ये सारी चीजें आप जब एक इस एक्सरसाइज को करते हैं तो फिर ये आपकी अपनी जो वीकनेस है वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाती है कि क्या क्या चीजें हैं जिनको, या फिर स्टैंडर्ड थे कि आप चेकलिस्ट बना लें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्टोर वालों को भी दे दें, प्रोडक्शन वालों को भी दे दें, ताकि वो प्रोडक्शन नोट अपने रिसीट एडजस्टमेंट जितने भी नोट है वो उसको पोस्ट कर लें, ये अपने कर लेंगे स्टोर वाले। अगर आपके मल्टीपल सिटीज में बिजनेस चल रहे हैं तो इंटर ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिकंसिलिएशंस एंड रेगुलेटरी नोट्स जितने भी इशू होंगे साइट्स टेरिटरीज के दरमियान, वो उनको कोशिश तो 25 तारीख तक 26 तारीख को क्लोज हो जाए। इसमें मार्जिन निकल सकते हैं एफिशिएंसी का। Amir Iqbal has asked, can we do operational audit in IT projects, like हाँ implementation of any ERP solution? हाँ जी बिल्कुल, उसमें बेस्ट वे ही है कि आप क्लाइंट्स अपने जो आपका जो है ना, फर्स्ट करेंगे आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, आप उस सेंटर पे बैठे हैं, तो आप अपने सिस्टम और टिकट्स की जो जनरेशन है ना उसके ऊपर लेके चले जाएं। अब होगा ये कि जब भी क्लाइंट कोई टिकट जनरेट करता है तो आपके सिस्टम में भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। उसे एक सर्टेन टाइम रख लें कि इस टिकट ने इतनी देर में सेटल होना है। अन जो सेटल्ड आपके टिकट्स हैं वो सामने आ जाएंगी, वो आप डेली उसको देख लें, मॉनिटर कर लेंगे उसको, मंथली या वीकली उसको कर लें, तो उसमें फिर हो गई आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि कौन सी टिकट्स हैं जो अनसेटल्ड है, वो किस बिजनेस सेगमेंट के ऊपर जाते हैं। फर्स्ट करने के जीआरएम के इशू ज्यादा आ रहे हैं क्लाइंट को, तो ज्यादातर टिकट्स वो जो होगी उसकी जो जीआरएम उनके जनरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, सबसे जो टेढ़ा मॉड्यूल है ना वो प्रोडक्शन का होता है। ये बड़ा टाइम टेकन होता है, बड़ा तसल्ली के साथ करना पड़ता है। तो मुझे भी समझ आती है, जो मेरे एक्सपीरियंस में भी रही है चीजें, कि अगर आप टिकट्स जनरेट करना शुरू कर देंगे तो आप जल्दी एफिशिएंसी को अचीव कर लेते हैं और चीजें जल्दी मॉनिटर होना शुरू हो जाती हैं, आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। Ghulam Fareed has asked, how can we handle resistance from management regarding operational issues? यार ये बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह पता क्या है, मैं अब आपको एक केस स्टडी की एग्जांपल देता हूँ। एक फरहान साहब का एक सवाल था, फरहान साहब ये आपका सवाल भी एक साथ ही जवाब आ जाता है। एक असाइनमेंट थी मेरे पास जिसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर रिपोर्ट करनी थी कि कैसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं। ये केस स्टडी है जी उसकी इंजीनियरिंग कंपनी की, जो कि मुख्तलिफ तरह के पोल्स जहाँ पे मैनुफैक्चर होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जब भी आयरन के कंपोनेंट आती हैं तो इनको आप मतलब कट टू साइज अपना कर लेते हैं कि आपने फर्स्ट करने का 130 फुट का भी खंभा बनाना है या आपने 15 फुट का भी खंभा बनाना है, तो आप
उस जो आयरन की जो आती है आपके पास एंगल, आप उनको उस हिसाब से कटिंग उनकी कर देते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर वो कट हो जाता है। कटिंग होने के बाद उसकी वो अलाइनमेंट कर लेते हैं, उसको शेप्स को डेवलप कर लेते हैं। सीएनसी मशीन में चली जाती है, उसकी नंबरिंग हो जाती है। अच्छा, अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है, अच्छा वो हम उसको उसके बाद हमने पहले तो एक प्रोसेस नोट कर लेते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अच्छा, अब ऑडिट जो हम एज एन ऑडिटर जाते हैं तो उसमें हम प्रोसेस फ्लो जो डॉक्यूमेंट करते हैं उसका वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता। वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ऑपरेशनल एफिशिएंसी की अचीवमेंट नहीं होती। आपने सिर्फ एक प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना होता है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लोग काम कैसे कर रहे हैं, बस। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये ऑलमोस्ट उतनी होती है जितनी कि एक इंजीनियर को उस प्रोडक्ट के बारे में होती है। लेकिन जाहिर है कि हम फाइनेंस के लोग, हमारा नॉलेज उस उतना तो नहीं हो सकता, उसमें 5 साल पढ़ी इंजीनियरिंग, लेकिन एटलीस्ट आपको बड़ी इन डेप्थ अंदाजा हो चुका था कि है क्या। अच्छा, अब होता है कि जब वो पैनल सारे के सारे कट हो जाते हैं तो उनको गैल्वेनाइज करते हैं, यानी कि आगे जाकर बड़े बड़े कुछ पूल बने होते हैं, बाथ बने होते हैं, उनके अंदर जो जिंक होता है इसमें होना होता है मेल्ट, उसको उसकी कोटिंग हो जाती है। अच्छा, मेरे पास जो एरिया था वो ये था कि कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करें कि प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, यानी कि जो मैक्सिमम जो हमारा स्केल है उसको भी अचीव करें, और आपके लाइन लॉसेस भी कम से कम हो जाए। अच्छा, अब उसके स्टैंडर्ड सेट होते हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना और अपना काम को कैसे निकालना। उसके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं कि जी इतने, उसको कहते हैं कि माइक्रोन्स, कि कितनी थिक कोटिंग होगी। अब देखिए, अगर ये है एक एंगल और इस एंगल में डिप होना है किसी चीज में और उसकी कोटिंग होगी इसके ऊपर। अच्छा, अगर कोटिंग ज्यादा होगी तो आपका मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, अगर कोटिंग कम होगी तो मटेरियल कम इस्तेमाल होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि ज्यादा या कम, इन दोनों में से भी कोई क्यों हो, एग्जैक्ट उतनी होनी चाहिए जितने की रिक्वायर्ड है। अब उसके लिए आपने एक अपनी स्टडी की होती है टाइम ऑफ मोशन के इतनी देर इसमें डिप रहना है तो फिर ये ठीक हो जाएगा। माइक्रोस की जो कोटिंग है उस तरह आपकी कोटिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा और जो मैं आपको मशवरा भी देना चाह रहा हूँ, ऑपरेशंस ऑडिट के अंदर जाने से पहले नेट से, गूगल से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें उस प्रोसेस की, उसको आप डॉक्यूमेंट करें और उसको किसी की असिस्टेंस के बगैर कोशिश करें कि मैक्सिमम आप उसको खुद से समझें। क्योंकि आप फर्स्ट करें, आगे जाकर हमने ये असेस किया कि लाइन लॉसेस एक इस तरह का टेंडर था जिसमें लाइन लॉसेस काफी ज्यादा थी। अच्छा, अब उसका कंपैरिजन बाकी के साथ किया तो पता लगा इस महीने में, इस क्वार्टर में ज्यादा लॉस हुआ। खैर, जब उसकी लॉस के रीजन को डिग आउट करना शुरू किया क्यों हो गया, तो ये पता लगा कि जो बात होता है वो होता है बेसिकली आयरन वेट। टेम्परेचर जब जिंक का ऊपर चला जाता है तो बाज दफा वो जो आयरन का जो बात होता है वो हो जाता है लीक। उसकी लीक होने की वजह से जितना भी जिंक उसमें था वो सारा का सारा बह जाता है। अच्छा, अब वो आपको जिंक को ठंडा करेंगे, जब ठंडा हो जाएगा फिर आप उसी जगह वहां जो क्रैक जो था उसको करेंगे वेल्ड, और वेल्ड होने के बाद फिर वो दोबारा मटेरियल उस पर डालेंगे। फिर वो एक टाइम होता है 3 4 5 घंटे वो दोबारा लेते हैं। उसके बाद वो फिर बात होगा गर्म और फिर उसका जिंक दोबारा मेल्ट होगा। ये तो चलो एक प्रोसीजर एक नॉर्मल है। तो जो मैंने किया वो ये था कि मैंने एक पीएचडी साहब पास के थीसिस निकाली जिन्होंने जिंक पोल जो गैल्वेनाइजिंग के ऊपर एक थीसिस लिखा था। उसमें उनकी स्टडी क्या है, कितने स्टैंडर्ड होते हैं, कितने पैरामीटर्स हैं। अच्छा, वहां से मुख्तलिफ तरह की जो एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड थे उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फिर आप जाते हैं, ठीक है, आप इंजीनियर्स के बाद ही ठीक है ये बताएगा फला काम कैसे करते हैं, फला कैसे, फला कैसे, फला कैसे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर जो भी रिस्की एरिया होता है ना उस पर आपके सवाल बहुत सरसरी सा शुरू होता है। आप शुरू में उसको उधेड़ने में लग जाएंगे उस चीज को, और फर्स्ट करने की वो गलती कहीं पे थी और उसको छुपाई हुई थी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में बड़े सीरियस किस्म के हो जाते हैं। जैसे कि मेरे इस सिनेरियो में अब वो टोटल मटेरियल जो ओवरफ्लो हुआ क्रैक हो जाने के बाद,
वो तो 35 से 40 टन का था, जिसकी जो कॉस्ट है वो मल्टीपल मिलियंस ऑफ रुपीस की थी। अच्छा, अब उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, हम उसको फिर डालते हैं, फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जब उसकी हम मतलब कि जो मैं डेप्थ में जाता है तो पता लगा कि टेम्परेचर कम है। अच्छा, टेम्परेचर कम है तो अंदर जो जिंक है उसका टेम्परेचर भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो उतना गर्म नहीं है। गर्म चीज होने के बाद मेल्ट ज्यादा हो जाती है। अगर वो ठंडी होगी तो कम मेल्ट होगी, कम मेल्ट होगी तो ज्यादा थिक होगी, तो कोटिंग अपने आप ज्यादा हो जाएगी, तो लाइन ऑक्साइड आपके ऊपर चले जाएंगे। आपने, क्योंकि ये आप जब ऑपरेशन ऑडिट करते हैं ना, तो ये एट वंस आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि हम लोग तो आदि हैं अकाउंट्स फाइनेंस, वो जस्ट पोस्टिंग, बजट्स बनाने, इन चीजों को देखने का, वो एक अलग साइड ऑफ है नॉलेज। उसमें मुमकिन आपको इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़नी पड़े, इंजीनियरिंग का काफी सारा कुछ स्टफ पढ़ना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, कौन सा केमिकल किसमें साथ डल जाएगा, फिर क्या होगा। तो अब जब मैंने स्टेज स्टडी को किया था तो मैंने वो केमिकल रिएक्शंस पे बैठ के पढ़े कि कौन कौन से केमिकल्स डलते हैं, कितने डलेंगे, पर टन उनकी क्या कंपोजिशन होगी, पता है। अच्छा, फर्स्ट कर लेंगे, उन्होंने आपने कहा कि ये ऐसा होता है कि आप केमिकल्स डालते हैं, उन्होंने कहा जी तो डालते हैं, कितने डालते हैं, इतने डालते हैं, वो भी इसको स्टैंडर्ड था। लेकिन अगर वो चीज आपके सामने पड़ी हो, आप तो कैसे गेज करेंगे क्या एक्चुअली वाकई इतना था। और फर्स्ट कर लेंगे वो पास्ट इवेंट है जिसको अब आप ऑपरेशनली, अब जिसका ऑपरेशन ऑडिट अब हो रहा है, अब कैसे पता लगेगा। ये इस तरह के इश्यूज हैं जो बड़े टाइम टेकर होते हैं। और मैनेजमेंट अपने भी कामों में उलझी हुई है, अब इधर आपके सवाल भी हैं, बड़ा बैलेंस्ड होके चलना पड़ता है। अच्छा, अब जो जो भी रिस्की एरियाज हैं, आप देखिए कि उसके ऊपर जो जो स्टैंडर्ड कंट्रोल्स है वो क्या है, रिकमेंडेड कंट्रोल्स क्या है। जैसे मैंने जब इस प्रोजेक्ट को किया था तो मैंने यूटी की जाके थीसिस निकाल के पढ़े बैठकर। तो ये मतलब इस तरीके से नहीं है कि आप बुक्स पढ़ लेंगे ये पढ़ सब कुछ हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। मुमकिन है कि आपको 2 3 4 6 महीने लगे उसकी ऑपरेशनल डेप्थ में उतरते हुए। अगर जो डेप्थ में उतरता गया ना तो बड़ी चीजें मेरे पे आश्कार हो। जैसे उस आयरन के कंपोनेंट को पहले वॉश किया जाता है मुख्तलिफ केमिकल्स में। अच्छा, उनसे पूछे कि केमिकल्स में और कौन कौन से केमिकल डलते हैं, फाफला केमिकल डलते हैं, किस कंपोजिशन पर डलते हैं। अच्छा, अब वो कंपोजिशन क्या थी कि जो लोग पहले वहां पर 15 20 साल से थे, जजमेंटल बेस्ड कंपोजिशन थी। इतनी बाल्टियां भर के डाल दो, इतने डब्बे वो भर के डाल दो, बस वो काम हो जाता है। उसके बाद हाँ बाकी काम हो जाता है, लेकिन जो एफिशिएंसी का मार्जिन था वो आपने लूज कर दिया, क्योंकि आपने अपने काम को जजमेंटल बेस्ड किया, ना कि स्टैंडर्ड बेस्ड। तो अब उस जजमेंटल बेस्ड काम को मॉनिटर करना और उसके अंदर उस एफिशिएंसी के मार्जिन को कैलकुलेट करना, एक तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ साथ डेवलप होती है, और दूसरा ये होता है उसमें इशू कि उनके भी इश्यूज होते हैं। जैसे प्रोडक्शन के लोगों, एक तो आप पूछेंगे वो आपको बता देगा कि हमारा स्टैंडर्ड ये है, चंद दिन बाद आपको पता लगता है ये तो स्टैंडर्ड ही कुछ और बता रहे हैं। वापस जाएंगे यार असल बात तो ऐसे, हाँ हमने अभी तो उस टाइम आपको यही कहा था। अब वो उनकी यूं कहने की गफलत या उनका जानबूझ के जो छुपाना है इस चीज को, वो सारा का सारा अच्छा असल में आप ये कहना चाह रहे थे, ये आपने पहले में भी नहीं बताया। अच्छा, अब ये तो थी चीजों को हाइड करने का तरीका, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है जो बियर करती है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जब इस लॉसेस को मुसलसल बियर करती चली जाती है तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ जाता है। रिजल्ट ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके प्रॉफिट्स कम होते हैं, आपके इंक्रीमेंट्स कम लगती हैं, बोनसेस कम होंगे, एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन बढ़ती है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन का लेवल ड्रॉप होता है वहां पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उनके जहन में सबसे पहला ख्याल ये होता है कि यार हमें पे क्या ये करते हैं, हम ये काम करें, हम ऐसे उनको भागते हैं और पे क्या किए। अब वो कहाँ से पे करें जब आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं अचीव हो रही, तो आपकी जो पेइंग कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी कर्टेल हो जाती है, वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये मतलब चेक किया कि जितने भी ये खंभे बनने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं, ये पहले मुख्तलिफ केमिकल्स में वॉश होते हैं।
केमिकल से कंपोजिशन को स्टडी किया तो पता लगा इसमें फला 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 ABCD केमिकल डलता है। उनसे पूछे ये केमिकल्स आप डाल रहे हैं, तो उन्होंने इसमें 2 डालते हैं, 2 का नाम सुन के उन्होंने मुझे कहा ये तुमने सुना ही पहली दफा, यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं होती। अच्छा, अगर वो भी इस्तेमाल होते तो ये आयरन का कंपोनेंट ज्यादा बेहतर तरीके से वॉश हो सकता था, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि वो कम बेहतर वॉश हुआ और वो आगे चला गया प्रोसेस में। जब वो कम वॉश होते हैं तो अब जब वो जिंक पे होता है डिप, तो उसके आयरन के अपने आयंस होते हैं, तो मतलब कि टेक्निकली स्पीकिंग कि आयरन के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वो जब जिंक के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाकर रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से लाइन लॉसेस आपके इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब अगर देखें तो मैं तो इंजीनियर नहीं था, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए आपको ये टेक्निकल नॉलेज गेन करना पड़ता है, आपकी मजबूरी है। और जो बंदे, आप एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि जो लोग उस केमिकल को नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर पिछले 20-25 साल से ही कभी इस्तेमाल हुआ था, तो क्या वो आपको ऑपरेशनल ऑडिट को डॉक्यूमेंट जब आप कर रहे हो क्या वो ये आपको बताएंगे? एंड हम क्या है कि वहां पर खुद भी हम बहुत सारे लोगों को पता, जो चीज प्रैक्टिस में नहीं होती तो वो चीज वैसे ही भूल जाती। और अगर वो नहीं भी किसी को भूली थी, और जब आप लाइन लॉसेस की एग्जैक्ट वजह जानना चाहते हैं कि क्यों इतना लाइन लॉस हो रहा है, एज पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम उसको क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, तो उनके पास बड़े आम से जवाब होते हैं, और जी इस माहौल में कहाँ हूँ, और जी वो यूरोप की बातें आप उनको छोड़। मसला ये नहीं, मसला कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए जो टारगेट्स इंटरनेशनली सेट किए जाते हैं बड़ी रिसर्च के बाद होते हैं, लेकिन आप उनके साथ टेबल टॉक में उस वक्त उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं जब आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग को, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन साइकिल फ्लो को, उसके प्रोसेस फ्लो को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट ये होगा कि आपकी एफर्ट्स भी बिल्कुल सरसरी होंगी, बस ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं अचीव होगी। तो लाइन लॉसेस जो मैंने मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कैलकुलेट करके दिए वो उससे काफी कम थे, जो एक्चुअली हम इस नाम पर कि जिस स्टैंडर्ड इतना ही आता है हम उसको बर्दाश्त कर लें बस। और जब एक्चुअल उसको स्टडी किया गया तो फिर पता लगा गया कभी अगर ये केमिकल्स परचेज कर लिए जाते तो ये आयरन ज्यादा बेहतर तरीके से वॉश हो सकता था। जब ये वॉश होकर आगे जिंक में डिप होगा तो वहां पर इसके जो है रिएक्शन वो ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, अब दिलचस्प बात जो थी वो ये थी कि जब इस सारे केस को स्टडी करके मैंने डॉक्यूमेंट्स को देखा और मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स पढ़ी, तो वो ये शो करती थी कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये हुआ था कि इस एक क्वार्टर में लाइन लॉसेस इसलिए आए थे ज्यादा कि वहां पर जो जिंक था ये ओवरफ्लो हो गया था, प्रोडक्शन रुक गई 1.5-2 दिन जिंक के लिए ठंडा होने में, क्योंकि 30-40 टन अगर जिंक कहीं पर उबलता हुआ गिर गया मोल्टन जिंक, तो वो जो जितना भी वो होगा आपका मोल्टन मैटर दैट विल टेक सम टाइम, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे मिलेंगे, वो ठंडा होगा, उसके बाद वो फिर आप क्रेन मंगवाएंगे उसको इकट्ठा करेंगे, तो टाइम भी कंज्यूम हुआ उस दिन की, आपको लेबर की कॉस्ट भी पड़ती, प्रोडक्शन आपकी जीरो पे चलेगी, अगला दिन पूरा वो लेगा, दोबारा वो मेल्ट होगा और फिर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो ऑपरेशनल लॉसेस आपको सस्टेन करने पड़ते हैं, फिर वो आपको इस तरीके से आ जाती हैं। लेकिन जब केस स्टडी हुआ उसमें एक वजह ये भी बताई गई थी कि टेम्परेचर बहुत हाई था, तो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो जो आयरन का बाथ है वो हो जाता है लीक क्योंकि अगर एक चीज 450 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को सस्टेन कर रही है, टेम्परेचर आपका 460 470 पे चला गया, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर चला गया ऊपर, तो वो जो आयरन का पीस जहां पर मुसलसल हीट लग रही है उसकी सस्टेनेबिलिटी 450 डिग्री वाली है, जब मुसलसल वहां पे हीट पड़ती रहेगी तो क्रैक हो जाता है वहां से। खैर, जो रिकॉर्ड था टेम्परेचर रजिस्टर वो मंगवाए, वो चेक किया तो पता लगा कि यार ये तो ऐसा नहीं, सिचुएशन तो बिल्कुल डिफरेंट है, टेम्परेचर तो इतना हाई था ही नहीं। तो रिजल्ट ये था कि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं थी, जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है मेंटेनेंस का उसमें मेंटेन नहीं किया गया उस चीज को। रिजल्ट ये होता है कि लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से आपको वो लॉस उठाना पड़ जाता है। अच्छा, अगर हम इंजीनियर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं वहां पर बैठ के तो वो बताते हैं नहीं कि ये तो इतना टाइम तो हो ही जाता है, ये तो सब प्रोडक्शन का काम है, इधर तो होता ही रहता है। वो एक ही लाइन में अपनी सारी इनएफिशिएंसी को छुपा लेते हैं आपसे।
कि ये तो प्रोडक्शन है, ये तो आप जाके जिम्मेदारी फैक्ट्री में जाके देख लें, वहां पर भी होती है। हाँ, ये बात ठीक है कि होते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्यों हुआ? आप एग्जैक्ट जो रीजन है उसको जानने की जब पीछे जाते हैं तो फिर आपको पता लगता है असल में इशू वो नहीं थे जो मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन साइड से आपको बताया जा रहा होता है। तो वो अपनी ऑपरेशनल वीकनेसेस को बड़े आराम से टेक्निकल लफ्जों में छुपा लेते हैं। और ये फैक्ट है क्योंकि हम खुद इंजीनियर नहीं होते तो हमें केमिकल रिएक्शन का भी नहीं पता होता। और क्योंकि हमारे पास ऑपरेशनल एक्सेलेंस को अचीव करने का एरिया भी नहीं होता, तो रिजल्ट ये होता है कि वो चीजें वैसे ही खत्म हो जाती है, उससे सामने ही नहीं आती। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपका सवाल ये था, जिससे ये बात चली कि आप कैसे मैनेजमेंट को रजिस्ट कर सकते, क्योंकि रजिस्टर्स को काम करेंगे। पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन साइकिल आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है। फिर जो रिस्की एरिया आप उनको देखें और बराह रास्त सवाल करने के बजाय उस रिस्की एरिया पर जो कंट्रोल है उसको असेस करें कि कंट्रोल कितना बेहतर है। कंट्रोल एक तो कितने कि आप बाय वर्ड ऑफ माउथ जहाँ भी फलां चीज की थी नहीं की थी, हाँ जी मैंने तो की थी, फलां किया था, हाँ जी मैंने भी किया था, फिर क्यों आज ये मशीन ही पुरानी। इस ऐसा करने की वजह आप उनको कहेंगे इस प्रोसेस के रिस्क को आप डॉक्यूमेंट करें। अगर टेम्परेचर है तो आप हर 1 घंटे को टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें, इसे रजिस्टर बनाएं, अब टेम्परेचर कितना है, हर आधे घंटे के बाद उसको लिखें। तो आप हर रिस्की एरिया को जब डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको वहां पर एक प्रॉब्लम तो आएगी कि वो डॉक्यूमेंट करना नहीं चाहेंगे, या अगर डॉक्यूमेंट करेंगे तो टाइमली नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये होगा कि एटलीस्ट जो आपका रिस्की एरिया वो डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गया, तो उसके बाद ही आप इसको आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने फिर ये कहा ना कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट देखनी होती है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितनी कमिटेड है। क्योंकि फर्स्ट करने की ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक एरिया में जो अचीव की जा सकती है और उससे आपकी सेविंग है फर्स्ट कर लें कि 2%, 3% या 5%। अब 5% सेविंग को बचाते बचाते आप सारी प्रोडक्शन की लेवरेज जगह इकट्ठी कर रहे हैं और स्ट्राइक करवा बैठे, ये भी ठीक नहीं है। तो बाज का ऑपरेशनल जो रिस्क होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको वो एज इट इज ही एक्सेप्ट करने पड़ जाते हैं। मैं यहाँ पे केस स्टडी थोड़ी सी रोकता हूँ आपको कुछ सवाल देखने के लिए, उसका फिर हम उसको आगे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। What is the estimated cost of RFID? ये असल में RFID सोल्यूशन मल्टीपल कंपनीज देती हैं, आपको कंपनी से देखना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ शायद कुछ 4-5 लाख रुपए के अंदर कवर हो जाता है, या शायद इससे भी सस्ता। और अगर आप RFID किसी लोकल सॉफ्टवेयर हाउस वाले इंप्लीमेंट करवाएंगे, जो कि डेफिनेटली शायद नहीं से होना होगा, तो उसमें आपको मजीद इसमें कॉस्ट कर्टेल हो जाती है। जहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया था तो वो चाइनीज सेटअप था प्रोडक्शन का, और उधर की RFIDs इंप्लीमेंट की, उन्होंने डिवाइसेस तो ज़रा बाहर से मंगवाई थी, लेकिन जो सपोर्ट सर्विसेज थी वो भी वही कंपनी ही दे रही थी। नॉर्मली सपोर्ट सर्विसेज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट होता है, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। मतलब आपको अपने ऑपरेशन डिफाइन करने पड़ते हैं, ऑपरेशन का स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करना पड़ता है, और फिर उस हिसाब से वो कार्ड अपना प्रोग्राम करना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन पॉसिबल है और दुनिया में चल रहा है। कॉस्ट इसकी इसीलिए रेंज में आएगी, मान के कंपनी शायद ज़्यादा कॉस्ट आपको कोट कर दे, आपको नेट से देखना पड़ेगा। जिसका मैंने आपको दिखाया इसका नाम है आई गारमेंट। मैं तो कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नाम मैं कुछ होता हूँ कराता हूँ, लेकिन जो मैंने किया था उस प्रोडक्ट का नाम ये था, नेट से चेक कर सकते हैं। How can we overcome our fear of operational audit in companies to make operational audit as constructive audit for finance, production department, etc.? देखिए इसमें सबसे पहले तो जहाँ पे मैनेजमेंट की कमिटमेंट है वहाँ पे आपकी अपनी अप्रोच भी है। अगर आपकी अप्रोच ये होगी कि मैंने यहाँ पे चोर ढूंढना, तो फिर डेफिनेटली आपके सवाल का एंगल, आपके बॉडी एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऑपरेशनल एक्सेलेंस को अचीव करना, उसमें बेहतर ये होता है, जो मैंने 2-4 जगहों पर एक्सपीरियंस भी किया है इसका, कि आप एक मीटिंग पहले कॉल करें, उस मीटिंग में उनको पहले क्लैरिटी दें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि हमारा मकसद आपकी गलतियों को ढूंढना नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जहाँ पर भी बिजनेस एरिया रिस्की होता है, वहाँ पर वो रिस्क प्रॉपरली कंट्रोल या मैनेज नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना वो लॉस भी इनकर हो रहा होता है। अच्छा, अब जो बंदा उस एरिया को किसको सुपरवाइज कर रहा है ना,
मेन थ्रेट या मेन चैलेंज आपके लिए वो बंदा होता है, उसको हैंडल करना। अगर आपको कॉन्फिडेंस मिले यदि इस असाइनमेंट का पर्पस आपको जॉब से निकालना नहीं है, ना ही आपकी किसी गलती को ढूंढकर आपको फायर करवाना है, बल्कि यहाँ पर बिजनेस में ऑपरेशनल एक्सीलेंस की अचीवमेंट इसका मकसद है, और उसमें आपकी भी कैपेसिटी बिल्ड होगी और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोई ना कोई रिवार्ड इंसेंटिव भी अगर साथ एसोसिएटेड हो तो लोग कंपैरेटिवली जल्दी आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। और अगर ये थ्रेट उनका है तो फिर इसका हल भी कोई नहीं, सिवाय इसके कि या तो स्ट्राइक होगी, झगड़ा होगा, या फिर वो बंदा जाएगा वहां से, या फिर मैनेजमेंट उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करे, फिर वो आपके बस का काम नहीं। अगर आप कर रहे हो अपनी बहादुरी की वजह से, बंदे के बस का फिर ये नहीं होता कि जो ऑनर होता है उसकी जाने के बाद का दबाव और उसकी मैनेजमेंट फिलोसफी का इम्पैक्ट वो और तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन पर। तो मीटिंग्स करें, लोगों से उनका फियर दूर करें, अपना फियर नहीं उनका पहले दूर करना जरूरी है कि वो इस चीज को अपनी जॉब से डिसमिसल ना समझें, उनको ये क्लैरिटी हो ताकि वो आपसे मिलकर कॉपरेट करें। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो ये है, आप जितनी मर्जी क्लैरिटी दे दें लोगों को, ये फियर लोगों के जहन से निकालना हमारे जैसी सोसाइटी में काफी मुश्किल है। उसकी वजह है बुनियादी, जिस जगह पर जॉब अवेलेबिलिटी कम होती है ना, वहां पर लोगों का इंटेग्रिटी स्टैंड वो कंप्रोमाइजिंग होता है थोड़ा सा। उसको पता है मेरी जॉब खत्म हो जाएगी, मुझे जल्दी जॉब नहीं मिलेगी, तो वो शायद वो कहने या वो करने पर जल्दी मादा हो जाता है जो वो नहीं कहना या नहीं करना चाहता होता। तो इसलिए आपको ऑपरेशनल एक्सीलेंस को अचीव करने में, ऑपरेशनल ऑडिट्स करने में प्रॉब्लम्स ये आती हैं। So we have one more question. A major RFID provider in Pakistan. नहीं, ये पाकिस्तान में पता नहीं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेरा नहीं ख्याल, ये आपको बाहर से खरीदने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप आर फाइल्स को जो भी आपके पास ERP है, अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस से भी कंसल्ट कर लेंगे ना, तो आपको भी आसानी से पता लग जाएगा कि कौन बंदा कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जब उसका जो बेसिकली आपने जो प्रोडक्शन जो फ्लो है ना उसको करना होता है अपने डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब उसका हर प्रोसेस पहले तो उसके सेगमेंट कर लें और हर सेगमेंट को डॉक्यूमेंट कर लें। फिर सेगमेंट के अंदर हम मजीद करेंगे ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन करते हुए हमें ये देखना होता है कि इस सेगमेंट को हम मजीद यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, अब उन ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म करते हैं तो उन ऑपरेशंस का आप करें डॉक्यूमेंट और उनका स्टैंडर्ड टाइम उनका नोट करें, इनका स्टैंडर्ड टाइम है कितना। जहां पर तो देखिए CNC मशीन्स हैं इंजीनियरिंग कंपनीज में, वहां पर तो जल्दी ये फंक्शन आना शुरू हो जाती है, वहां पे इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी बेहतर होता है क्योंकि वो साथ मैकेनिकल वर्क है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे CNC, अच्छा बात ऑर्गेनाइजेशन इसलिए की होती है कि वहाँ पर लोगों की जॉब्स को रिटेन करने के लिए CNC मशीन्स को पर्पसली डिफंक्ट कर देते हैं, पकड़ के ये चल रही थी इसमें इश्यूज पड़े हैं, इसका पैनल जल गया, इसका ये मसला, इसका वो मसला, और ये सारे मसले डेलिबरेटली खुद से क्रिएट किए जाते हैं। कुछ ऐसा चलेगी सर वो काम तो अच्छा करी वो फिर खराब हो गई, ये सर इससे बेहतर हम खुद ही कर लें। अच्छा, अब वो एक जो उसका पैनल होते हैं उसके अंदर वो बड़े 3-3, 4-4 के 5 लाख रुपए का एक पैनल होता है, बात पैनल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब 2 दफा पैनल जब जल जाएगा ना तो मैंने सोची कि यार ये इतने महंगे, ये लगता है कोई इश्यूज ही है इस मशीन के अंदर भी होंगे, दफा करें इसको, उसको साइड पर रख दिया, वैसे काम करें, उसके बाद हम इसको फिर दोबारा देखते हैं। एक्चुअली मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है बंदों को, तो जो उसको कबाड़ा कर देते हैं, पकड़ के उसको चलने नहीं देते। अच्छा, अब जब आप ऑपरेशन स्टोरेज में जाते हैं तो इस चीज को बड़ा केयरफुली आपने देखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट के ऊपर, आप उतना ही बेहतर सब्सिट्यूट्स को तलाश कर सकते हो, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने काम को कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कितनी बिजनेस सेगमेंट है उसको डॉक्यूमेंट कर लें, और अगर हर सेगमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर आ रहा है तो ये मजीद आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब हर एक के करते हैं हम एनालिसिस कि कहाँ पर कितनी आपको चाहिए होती है, कितनी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे मैं एक सरकारी इदारों में DAC की और PAC की मीटिंग होती है, मैं एक मीटिंग अटेंड की,
बड़ी दिलचस्प बात वहाँ पे हुई, उधर जो चेयरमैन साहब ने काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, उसके बारे में उन्होंने पूछा आपको कॉस्टिंग सिस्टम ठीक नहीं है, ये कॉस्टिंग सिस्टम है ही नहीं तो आप कैसे काम कर रहे हैं। उन साहब ने कहा जी हमें कॉस्टिंग सिस्टम की तो जरूरत ही नहीं। उन्होंने वजह पूछी कि वजह की, उन्होंने कहा वजह ये है कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और एक ही कस्टमर है हमारे। तो उनका ख्याल ये था कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रही हैं और मल्टीपल आपके कस्टमर्स हैं और प्लांट एक ही है और उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स की मल्टीपल प्राइसिंग की वजह से उसके जो प्रॉफिट है वो उसके अंदर है वेरिएशन, तो फिर आप ये डिसीजन लें कि आपको कॉस्टिंग का सिस्टम चाहिए और आपको इस चीज की भी जरूरत है कि आप ये डिसाइड करें कि कौन सी प्रोडक्ट रोकनी है, कौन सी प्रोडक्शन करनी है, किसको लॉन्च पहले करना है, किसको बाद में लॉन्च करना है। अच्छा, अब जहां पर बहुत पुराने लोग बैठे हैं और अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये होगा कि कॉस्टिंग के सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, तो जाहिर है कि वहां पर जब आप जाते हैं और ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात करते हैं तो वो बड़ी अजीब सी समझी जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स फिर वहां पर आप ठीक है वहां पे एसोसिएट होते हैं। तो पहले तो ये कि आपके बिजनेस की आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रोडक्ट है क्या, उसके बाद है कि प्रोडक्ट बनती कैसे और इसके अंदर कितने ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं और उस ऑपरेशंस के रिस्क कौन कौन से हैं जिसका इन्वॉल्व होंगे। फिर उन रिस्क में से कितने ऐसे जो डॉक्यूमेंटेड और कितने ऐसे जो अनडॉक्यूमेंटेड। अनडॉक्यूमेंटेड रिस्क को आप जब डॉक्यूमेंटेशन तक लेके जाएंगे तो वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या अब उसके ऊपर काम होगा, अगर होगा तो वो उसके बाद उसका लाहेअमल बनेगा कि कैसे होगा इसके ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास जो केस स्टडी थी इसमें वो प्रोडक्ट फर्स्ट क्लिक आती है पहले, उसके बाद उसकी फैब्रिकेशन का एक प्रोसेस होता है, फिर उसमें को होल्स होते हैं। अब होल्स करने के लिए भी मुख्तलिफ की मशीन है, कुछ तेज होती है सीएनसी, कुछ स्लो होती है सीएनसी। अच्छा, अब जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है ना वो सीएनसी में आपको महसूस होगा कि अमूमन प्रॉब्लम आपको ज्यादा आती है, और वजह क्या होती है, ये इस्तेमाल ज्यादा हो रही है। अच्छा, अब हमारे यहाँ लोग इस तरह के कि जो सीएनसी के जो डिपार्टमेंट उसके मेंटेनेंस का है वो भी साथ मिल जाते हैं। बार बार मेंटेनेंस होगी तो उनका काम भी चलता रहेगा। मेंटेनेंस जब चाहिए होती है मशीन की, पता है इसमें कंपोनेंट अगर वो तो कोरिया से आएगा, उसमें आप लगेंगे 20 दिन। अब 20 दिन जब आने में लगना है तो आपने अल्टीमेटली मैनुअल काम पे शिफ्ट हो जाना। उनके काम भी चलते रहते हैं, इनका काम भी चलता रहता है। अब वो पैनल आया, पैनल इंस्टॉल हो गया, 2-3 महीने लगे, अब क्या हुआ जी, वो जी इसको बिजली अब चली गई थी, वो फिर जल गई, वो हीटर ज्यादा हो गया था, ये एसी खराब हो गया था, तो सीएनसी के ऊपर एसी होना जरूरी था जी। तो आप महसूस करेंगे कि जहाँ पर इस तरह की एक यूनियन बनी होती है या मोनोपोली बनी होती है, वहां पर हर वो बिजनेस एरिया जो कैप्चर करके ठीक किया जा सकता होता है उसके इश्यूज ही नहीं खत्म होते। अल्टीमेटली आपको उस बिजनेस एरिया को उसके इश्यूज समेत कबूल करना पड़ जाता है। आप जब उसको उसके इश्यूज समेत कबूल कर लेते हैं तो आपके जो जो रिस्क है वो कभी भी नहीं मिटिगेट होते। जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में, मेरी केस स्टडी जो मैंने जाके केस दिया था, 30 साल 25 साल से सेम लॉसेस के साथ कंप्यूटर सेक्टर चल रही, और वहां पर ये बात मशहूर है कि ये लॉस होता ही इतना है, टेम्परेचर की होना ही इतना है, टेम्परेचर कंट्रोल ही नहीं हो सकता है। लेकिन जो जो डेप्थ में चलते गए, जो जो पता लगा कि जितनी भी टेक्निकल रिपोर्ट्स थी जो इंजीनियर्स ने लिखी थी उनमें बहुत बड़े बड़े फ्लॉ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वो उसके अंदर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही थी तो अल्टीमेटली वो फाइनेंस वाले वो विचार कहते हैं चलिए ठीक है ये सही होगा। बिल्कुल ऐसे सबसे डॉक्टर के पास थे और आपने उसको ये कहा तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे ये बीमारी, उसका तो जो टेक्निकल है उसको आप करते थे, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। जरूरत इस चीज की है कि आपने अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करना तो आपको अपने टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। फाइनेंस वाला नॉलेज तो है आपके पास, ऑडिट कैसे करना आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी है, प्रोसीजर के ऑडिट का ये भी आपको पता है, लेकिन आपका टेक्निकल नॉलेज वहां से मार खा रही। आपको अपनी वो कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है जो कि वास्तव में काफी टाइम टेकन होती है। तो मैंने उस केस स्टडी से गुजरते हुए देखा कि हर वो एरिया जहां पर लाइन लॉसेस कंट्रोल हो सकते थे, डेलिबरेटली वहां पर कभी भी कोई प्रॉपर प्रोसीजर इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वालों की जॉब भी सिक्योर नहीं और जो नीचे स्टाफ काम कर रहे थे उसकी जॉब भी सिक्योर नहीं, हर कभी भी जगह पर कुछ चलता है।
प्रोडक्ट में क्योंकि प्रॉफिट्स हाई थे, इसलिए बिजनेसमैन इस रिस्क को एज इट इज एब्जॉर्ब या उसको डाइजेस्ट करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको तसल्ली होती है ठीक है इतना तो मैं कमा ही रहा हूँ। तो ये इश्यूज हैं, इनको जरा हैंडल करने की जरूरत होती है। हमको सब क्वेश्चन आ गए, अच्छा हम आगे चलते हैं। अच्छा एसएमईज देखिए, बास का तो कुछ इंडस्ट्रीज में एसएमईज को प्रोडक्शन वालों से लेना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। वजह क्या होती है? एसएमईज में देखिए, जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो उतनी ही बेहतर रिपोर्टिंग करने की पोजीशन में होता है। जब फाइनेंस के लोग प्रोडक्शन की इनएफिशिएंसीज को या प्रोडक्शन की एफिशिएंसीज के ऊपर बात करने लगते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अच्छा, अब कौन सी चीज कितनी देर में एग्जैक्टली बनी, ये इंफॉर्मेशन उनके पास तो होती है, लेकिन नॉर्मली आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। वजह पॉइंट स्कोरिंग भी होती है। और अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन दे देंगे तो उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ये क्यों और वो क्यों। वो इसलिए कहते हैं कि ये बस अब ये बना के आपको दे देंगे, और प्रोडक्ट तैयार होगी, वो मार्केट में सेल होगी, अब वो कहीं 6 महीने बाद अच्छा है वो ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप ले लें। जरूरत होती है हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन की। या तो आप लोगों पे डिपेंडेंट हो जाए रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि आनी नहीं, या फिर आप RFID या दूसरी टेक्नोलॉजीज का सहारा लें कि वो लाइव इंफॉर्मेशन कैप्चर करें और आपके साथ शेयर करते हैं सिस्टम। फिर तो आप इस चीज में जा सकते हैं, वरना इसमें जाना काफी बड़ा चैलेंज बन जाता है। अच्छा, अब जो सिस्टम करंटली जितानिया साहब गुजरे इस केस स्टडी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक हाई टेम्परेचर काफी बड़ा इशू है कि कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो आयरन का जो बाग था वो लीक हो गया। लाइन लॉसेज एक काफी बड़ा इशू है, जिसकी वजह हमें ये बताएंगे टेक्निकली कि जो टेम्परेचर ऑफ द जिंक था वो ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप होने की वजह से वो जिंक जो था, जो बोल्टन होने की वजह से उबलने की शक्ल में था, जैसे ये थिक होता गया, ठंडा होता गया तो थिक होता गया। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप शहद ले लें, आप शहद को अगर गर्म कर देंगे और उसमें अपनी उंगली डिप करें और फिर निकालें तो थोड़ा सा शहद लगेगा। अगर आप फ्रिज में पड़ा हुआ शहद हो, आप उसमें अपनी फिंगर डिप कर देंगे, बाहर निकालेंगे तो आप काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपके साथ लग जाएगा। जब हमने लाइन लॉसेस को देखना शुरू किया ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए, तो हमने ये वजह बताई कि जी इस केस में टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका, तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो हमें पता नहीं चला, और जिसकी वजह से जो माइक्रोन्स की जो कोटिंग थी या जो उस मटेरियल की कोटिंग थी जिंक की, वो आयरन के ऊपर एक्सेसिव होती गई, तो ये उसकी वजह से एक्स्ट्रा कोटिंग होगी, तो लाइन लॉसेस ऊपर चले गए। फैक्ट ऑफ द केस से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जब टेम्परेचर डिस्ट्रिक्ट को देखा, चेक किया, तो पता लगा कि टेम्परेचर हर 1 घंटे के बाद गेज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि टेम्परेचर रजिस्टर से रिपोर्ट बनाता था प्रोडक्शन का स्टाफ, और उन्होंने यही रिपोर्ट बनाई कि ये देखिए इस पूरे क्वार्टर में टेम्परेचर कम रहा। उसकी वजह ये थी कि ये जो कैटल है, या ये जो बात है, कैटल हमने लफ्ज इस्तेमाल जो टेक्निकल वर्ड है, कैटल के अंदर जो जिंक था, इस ये तो था, लेकिन कैटल के बाहर जो बर्नर लगे होते हैं, जो फायर फेंकते हैं, जिसकी वजह से कैटल बर्न होती है, तो फिर वो टेम्परेचर उतर जाता है। इन बर्नर्स का इशूज था, ये बर्नर ठीक तरह से टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस टाइम पे नहीं हो रही थी। अब जाके हमने मेंटेनेंस का रिकॉर्ड चेक किया तो पता लगा कि जी टाइमली मेंटेन हो रहा है। अच्छा, अब लाइन लॉसेस की वजह जो उन्होंने बताई थी वो भी नहीं साबित हो सकी। जो उन्होंने उस कैटल के क्रैक होने की वजह बताई थी वो भी नहीं साबित हो सकी। अब अगली जो चीजें थी कि जी इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आयरन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज कर लिए Fe ने, जो उसको Fe जो वैलेंसी बनती है केमिस्ट्री के मुताबिक, और वो जब जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्योंकि ये दो मुख्तलिफ तरह के मेटल्स हैं, इनके रिएक्शन में इतनी तो लॉस आने का, इतना जो जिंक का वो वेस्ट होना ही होना। जब जिंक की आप टेक्निकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और जिंक का आयरन का रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन के अंदर उसके जो बनते हैं ड्रॉस और एशेस, उसको कम करने के आप प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनली उस पर बड़ी रिसर्च हुई भी। आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि यार अगर फला 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 केमिकल डलते, अगर ये इतनी देर प्री प्रोसेसिंग इसकी हो जाती, अगर ये इतनी देर बाद धूप में पड़े रहते, अगर आप इसको पानी से धो लेते,
अगर आप इसको किसी एसिड में डाल के पहले डिप कर लेते और उस एसिड में भी ये टेम्परेचर होता तो ये सब कुछ ठीक हो सकता। आगे जाके लाइन लॉसेस इतने नहीं होते थे। अच्छा, अगर तो ये इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर दें वेल बिफोर टाइम तब तो ठीक है, वरना अगर आप ऑपरेशनल ऑडिट्स में इन मैनेजमेंट के लोगों की रिपोर्ट्स पर रिलाई करते रहेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एंड द रीजंस कि वो हुआ क्या था जिसकी वजह से आपके लाइन लॉसेस ऊपर चली। तो मुझे टाइम तो काफी लगा, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए। तो जब मैंने ये सारी तैयारी की प्रोडक्शन स्टाफ ने इंटरव्यू शुरू किए और एग्जैक्ट जब वजह तक पहुंचे तो पता लगा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव हो सकती है, लेकिन ये नहीं अचीव हो रहा रहते बेसिकली। तो एक रन जाता था और एक आता था उन लोगों के चेहरों पर। वजह क्या थी कि कभी किसी ने टेक्निकली चैलेंज नहीं किया इंजीनियर्स को। अब ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है और इशू ये होता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। रिजल्ट ये होता है कि उनकी रिपोर्ट्स पर रिलाई करना पड़ता है। आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ऑडिट में रहते हुए आप रिपोर्ट्स में जो लॉसेस हैं उनकी एक वैल्यू को असरटेन कर लेते हैं। हमारा सारा का सारा जोर उस कैलकुलेशन पर ही होता है कि जो लॉसेस मैंने कैलकुलेट किया ये क्वांटिटी और इतना ही लॉस बनता था, हमें बहुत उतना ही बनेगा। लेकिन पीछे जो इतनी बड़ी जो साइंस है और पीछे जहां जहां पर इतने बड़े बड़े फ्लॉज हैं उनको कौन ठीक करेगा। तो एक इंडिपेंडेंट वॉइस की जरूरत होती है कि जो रेज की जाए और जो इसको हैंडल करे इस इशू को, क्योंकि जब तक इंडिपेंडेंट वॉइस ऊपर नहीं जाएगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इवन या जो सीनियर मैनेजमेंट है एमडी है या उसके नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ और रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल कुछ और है। तो इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज और फिर वो चीज चलती रहे, आपने इसको बड़े ध्यान से देखना होता है। लेकिन उससे पहले आप मीटिंग्स में मैनेजमेंट को इस बात पे एक पेज पे लेके आते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऐसे नहीं अचीव होगी। ये रिपोर्ट्स तो होती ही डिसेप्टिव है, ज़्यादा जो तब पैसे वो डिसेप्टिव रिपोर्ट्स को बना के भेज देता है। तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस को अचीव आप फिर इस तरीके से करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ और अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बिल्ड करने के साथ। जब वो बिल्डअप हो जाएगी तो फिर आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। Otherwise, it will be very difficult to get the operational efficiency. अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन जैसे मैं इसके लिए कि इंफॉर्मेशन की फ्लो बास्केट का बड़ा प्रॉब्लम होती है, उसको बड़ा जरूर ध्यान से करना होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल समझने के बेसिकली बनी होती है लॉगिंग। अच्छा, अब जो इश्यूज हमें आते थे अपनी केस स्टडी के अंदर, एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, रिजल्ट सारे डॉक्यूमेंट हो गए, जब रिपोर्ट फाइनलाइज की तो उसमें कोई एक इशू आया, मैं तुम्हारा बंदे को उससे पूछा ये चीज कैसी थी, उसका बिल्कुल मुझे अलग इंफॉर्मेशन दी। अब वो इंफॉर्मेशन इतनी डाइवर्सिफाइड थी कि सारी रिपोर्ट धड़म से नीचे गिर गई, गिरने से काम करना पड़ा उसके ऊपर। तो आप अगर आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है ना, तो आपको इस रिस्क को फिर बियर करना पड़ेगा। और अगर आप मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो कि कॉमन सेंस की बात है, मैंने कुछ जैसे टेक्निकल बात कही, तो उसमें होता ही है कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन की वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन जो गैदर होती है ना, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है प्रोडक्ट की भी और ऑपरेशंस की भी। अच्छा, अब कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको इसके अंदर एक बड़ी मजे की बात बताते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ ये केस। फर्स्ट करने की ये कैटल है जिसके अंदर जिंक है। अच्छा, अब इसको यहाँ से और यहाँ से हीट मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। अब इसके अंदर जिंक है, वो हो गया गर्म। अच्छा, अब रिपोर्ट ही कहती थी कि तकरीबन कुछ 40-45 या 50 टन जिंक यहाँ से कैटल क्रैक होगी, कैटल क्रैक हुई और उसको फ्लो हो गया। अच्छा, अब समझिए जब मैंने जाके ऑपरेशन देखना शुरू किया तो कई शायद हफ्तों के बाद मेरे जहन में ख्याल है कि कैटल क्रैक कहाँ से हुई थी।
अच्छा, जब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगी तो ये पता लगा फर्स्ट कर ये इधर से क्रैक हुई। अब कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर कैटल यहाँ से क्रैक हुई है तो ये अपर एंड है, अगर कैटल यहाँ से क्रैक हुई है तो ये इसका बॉटम एंड है। अगर यहाँ से क्रैक हुई तो मैक्सिमम जिंक फ्लोट होगा, यहाँ से क्रैक हुई तो मिनिमम जिंक फ्लोट होगा। जो क्वांटिटी प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स में बताई गई थी उसके मुताबिक सपोज कर ले कि कैटल को यहाँ कहीं से क्रैक होना चाहिए था। अच्छा, अब यहाँ से क्रैक होगी तो फिर इतना जिंक बाहर निकलेगा ना जी। तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए मतलब हर दफा ये कहना पड़ता है कि जब तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी तो आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी कभी भी नहीं अचीव कर सकते। जो लॉबिंग है प्रीवियस एम्प्लॉयज की, वो ऑलवेज वो हर्डल होगी, वो डिलेमा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब है, और भी दुनिया के मुल्कों में यही इश्यूज है आपके। आप जिस भी बंदे को इन्वेस्टिगेट करेंगे या जिस भी बंदे के साथ ऑपरेशनल एक्सेलेंस पे बात करेंगे वो बातें तो बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन जिधर आप उनके ऊपर आ जाएंगे ना कि जी ये एरिया था इसमें ये अचीव किया जा सकता था, ये इसमें गैप एग्जिस्ट कर रहा है, आपने क्यों नहीं अचीव किया, तो उसके पास बेशुमार जस्टिफिकेशन होती है। ये मसला हमारा, ये मसला जी, वो मसला मैनेजमेंट स्पोर्ट कर दी, बंदे पुरानी है, चीजें पुरानी है, स्टाफ पुराना है, ये मसला वो मसला है। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है बशर्ते कि एम्प्लॉयज की डेडिकेशन, मैनेजमेंट की डेडिकेशन हो और आप में इतनी सलाहियत हो और इतना जज्बा हो कि आप उस काम को कर गुजरें। अच्छा, अब पोर इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए जब उस रिस्की एरिया को डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं तो ट्रबल आनी है। उसका तरीका ये है कि आप पोलाइटली लाइटली शुरू में उनको बार बार डेली बुला के पूछें, हर घंटे बाद पूछें, हर 2 घंटे बाद पूछें, वीकली पूछें। उससे होता ये है कि उनको ये एहसास आहिस्ता 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 होना शुरू हो जाता है कि इस काम ने यार आखिरकार होना है, मैनेजमेंट पीछे पड़ी हुई है, मुझे करने का। और अगर आप अचानक से इंजेक्शन देके कहेंगे अभी ठीक हो जाए, तो अभी जब आप ठीक करते हैं तो फिर उस अभी की एक कॉस्ट होती है जो आपने बियर करनी होती है, वो झगड़े की शक्ल में भी सामने आ सकती है, मजीद लॉसेस की शक्ल में सामने आ सकती है और स्ट्रेट अवे रिफ्यूजल की शक्ल में आ सकती है, हमसे नहीं ये काम होता। तो ये अब आपने इसका कोई, क्योंकि मैनेजमेंट साइंस है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, ये अगर आप ऐसे कर देंगे तो भी हो जाएगा, टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और जहां पर फर्स्ट करने आपने ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात की, मैं तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस को ढूंढने के लिए गया था, जो चीज ढूंढ के लाए वो फ्रॉड निकला है वहां पर। तो आप भी जब ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे जाएंगे तो डेफिनेटली चीजें सामने आनी होती है, क्योंकि हाईलाइट जो वीकनेसेस उन्हें हाईलाइट होना ही होना है। तो असल ये है कि आपको गोइंग फॉरवर्ड देखना चाहिए, जो हो गया हो गया। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो अपने आप सामने एक एरिया आ गया, आप गैप एनालिसिस आपने अपने कर लिए। अगर पॉलिसी नहीं थी, पॉलिसी डेवलप करके जो पॉलिसी है तो पॉलिसी और प्रैक्टिस के द्वारा आप गैप आइडेंटिफाई कर लें कि क्यों गैप एग्जिस्ट करता है। जो भी गैप है अगर इसमें कवर होना है तो आप उसको गोइंग फॉरवर्ड जब लेके चलते हैं ना और पीछे नहीं जाते तो उससे एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन लेवल ठीक हो जाता है एकदम से। हाँ ठीक है, हमारे पिछले गुनाह नहीं खोल रहे। अगर आपने उनके गुनाहों का पिछले रजिस्टर खोल दिया तो फिर इशू को हैंडल करने में बाकी प्रॉब्लम होती है। फिर देखना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी स्ट्रांग है, ऑनर्स कितने कमिटेड है, ओवरऑल एनवायरनमेंट बिजनेस का कैसा है, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है एम्प्लॉयज की, और इंफॉर्मेशन कितने अरसे में निकलेगी, कोई बंदा बीच में से तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते। मैं एक जगह जॉब करता था तो वो टॉल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। अब हुआ ये कि जिनके लिए हम टॉल मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनके ऑडिटर आते थे, वो ऑपरेशनल ऑडिट करते थे हमारा। उन्होंने कोड पे मेरी बताया कि आपकी आप फलां जगह पे मुझे स्टॉक दिखा दें, फलां लॉट चले दिखा दें, अच्छा फलाना बैच दिखाएं। अच्छा वो जब भी हमने देखना तो वहां से कोई ना कोई इशू निकला, हमने बड़ा परेशान होना कि यार ये ऐसे ही मतलब इत्तेफाक है कि 4-5 चीजें ठीक चेक करता है उसके बाद वो चीज आती है आपको इशू निकल आता है। कुछ अच्छा तो हमें समझ ही ना है, बल्कि कुछ साल तो पता ही नहीं चला, क्योंकि अगर उसने 10 चीजें ठीक की हैं
उसने जाके चेक किए 7 ठीक थी, 3 गलत थी। अच्छा हम इस चीज पर ठीक है, चलो हम 70% अचीव हमने कर लिया, हमने 80% अचीव कर ली। अच्छा वो क्लास हमारी 2 चीजों के ऊपर होनी होती है, 20% नहीं चाहिए, 70% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक दफा ऐसा हुआ कि उनके पास टाइम कम था, उसने एग्जैक्ट कहा यार कोई फलां चीज दिखा, उसमें इशू था, तो दूसरी चीज उसमें भी इशू था। खुद ही शायद क्वेश्चन आ गया, आपको इतनी प्रिसीजन कैसे इंफॉर्मेशन। खैर कुछ हमसे ताल्लुक भी बन चुका था, तो उसने हमने कहा कि यार आपकी जो स्टाफ है वो हमारी पे रोल पर, आप उनको सैलरी देते हैं, उनको हम ही सैलरी देती हैं। हम सबको तो नहीं ज़्यादा दे सकते, 800-900 हज़ार रुपये का काम करें, तो हमने बीच में 4-5 बंदे कैप्चर किए हुए हैं आपके, हम भी उनको सैलरी देते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लीक कर। जब ये लॉबिंग इसलिए की बन जाती है ना, आप उस बंदे को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो बंदा रेजिस्टेंस दे रहा है आपको, इंफॉर्मेशन नहीं आने दे रहा अब तक, वो नॉर्मली हेड होता है उस डिपार्टमेंट का, क्योंकि ज्यादातर उसी के हुक्म वहां पे चल रहे हैं। उसके नीचे जो स्टाफ होता है आपको उसको थोड़ा सा तोड़ने की जरूरत होती है, आप उसे इंसेंटिव देंगे, उससे प्रमोशन की कमिटमेंट करें। इस तरह की चीजें जब आएंगी ना, तो उसके बाद वो उनके बीच में क्रैक आना शुरू हो जाता है, उस क्रैक से फिर वो इन्फॉर्मेशन लीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो बड़ी अहम बात है वो ये कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है ऑपरेशन ऑडिट्स की एफिशिएंसी को अचीव करने के दौरान, तो आप उसमें लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा मैं आपको एक और अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर करते हैं। ऑपरेशन ऑडिट्स थोड़ी हटी हुई बात है, लेकिन बात दिलचस्प है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे थे, तो उधर सेल्स का ऑडिट करना था और परचेज का, इन्वेंट्री का था। काफी सारी इन्वेंट्री हमने चेक की, बहुत सारी चीजें बिल्कुल ठीक लग रही थी। तो हमने ये की टिप है बेसिकली ऑडिट की, आप सेल्स रिटर्न निकाल लें, रिटर्न में कौन कौन से सप्लायर है। अब जो आपके पास जो उसका नेगेटिव चीज आपने ये नहीं था, आपने वो अपलोड कर लिया और उस इंफॉर्मेशन आपने एक्सपेक्ट कर ली, उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन लें कि अगर ये पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रार के पास होगी, कंपनी है तो एससीसीपी के पास होगी, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन लें, सीएनआईसी निकलवा लें, सीएनआईसी से उनके एड्रेसेस निकलवा लें। बल्कि हमारे पास एक लड़का था, वो नादरा से जाकर एक ट्री लेकर आया एक दफा कि इसकी फैमिली में कितने लोग हैं जो इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। सेल टैक्स रिटर्न से, एमटीएन से, सीएनआईसी से, नादरा से, आखिर हम वहां तक पहुंचे और वो आइडेंटिफाई किया कि यार ठीक है ये लोग हैं बेसिकली, किसी का मामू सप्लाई कर रहा है, किसी का चाचू सप्लाई कर रहा है, किसी का भांजा सप्लाई कर रहा है, किसी का पप्पा सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा अब एथिकली भी फर्स्ट करेंगे कि ठीक रेट पर भी सप्लाई करते हैं, तो दैट शुड बी कम्युनिकेटेड फर्स्ट टू द कंपनी। और बड़ा अनएथिकल काम है कि एक बंदा बिजनेस कर रहा है उसको अपना हटा दिया। अच्छा पेमेंट की टर्म्स उनके लिए फेवरेबल, उनके चेक जल्दी बन जाए, उनके क्रेडिट टर्म्स कुछ और बन जाए। तो इस तरह से लोग फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपनी रूट्स जो है वो उनकी गहरी होती जाती है। तो लाजमी नहीं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अपने डॉक्यूमेंट से, अपने प्रोसीजर फ्लो से पता लगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी जो आपको ऑर्गेनाइज के बाहर से कैप्चर करना पड़ती है, और प्रैक्टिकली इस इंफॉर्मेशन की कॉस्ट है जो बियर करती है, लेकिन वो आपको करनी पड़ती है। टाइम तो खत्म हो गया, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसके ऊपर बता दें। टॉपिक ये अच्छा था, लेकिन टाइम मुझे एसीसी ने 2 घंटे का दिया था। एनीवे आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप इसके ऊपर कांटेक्ट करें। सेल फोन पे शायद प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे ऑफिस के पास जैमर्स हैं, तो सेल फोन नहीं बात मेरा काम करता। ईमेल पर डेफिनेटली आई एम अवेलेबल, आपके जो भी इश्यूज हैं आप डिस्कस करें, मैं जो बेस्ट हो सका वो आपके लिए जरूर करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन मीनवाइल है तो उसको शेयर कर देते हैं। We don't have any questions, but we do have some thank yous for the session. And people are thanking you for the example that you've given. We have a question that please also give example with respect to the perspective of service industry. देखिए सर्विसेज इंडस्ट्री में भी आप अगर ऑपरेशनल एक्सीलेंस को लेके आना चाहते हैं ना, तो इसकी मिसाल बड़ी अच्छी है कि अगर आपकी कंपनी में फर्स्ट आईटी डिपार्टमेंट है, अब वो सर्विसेज लेते हैं। अच्छा अब आईटी डिपार्टमेंट की फर्स्ट एक बंदे ने कहा यार कि मेरा नेट इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा, किसी और बंदे ने कॉल कर दी,
वो थोड़ी सी केबल हिल गई थी, या मेरी ईमेल नहीं चल रही है, वो फला वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। अच्छा, अब वो सारा दिन छोटे छोटे इश्यूज लोग हल करते रहते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी कैप्चर नहीं होती, कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होती। अच्छा, अब होता क्या, वो एम्प्लॉय जितना मर्जी एफिशिएंट हो, लेकिन उसकी सर्विसेज क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होती है, तो इसलिए मैनेजमेंट की नजरों में भी नहीं आती। तो उसके लिए बेस्ट सिस्टम ये है कि हर एम्प्लॉय, हर बंदा अपनी जगह पे काम करे, अपने टिकट जनरेट कर दे कि जी मेरा ये इशू है, ये टिकट नंबर है। जब फिक्स हो तो वो लिखे जाके अपनी सीट पे बैठ के कि ये इशू मैंने आपका फिक्स कर दिया, ये आपका टिकट नंबर ये रिजॉल्व हो गया, अब अगला टिकट नंबर जनरेट होगा। सर्विस इंडस्ट्रीज में भी आप इसको किसी इसी तरह के सिस्टम को लेके जाए। फर्स्ट करें हॉस्पिटल है, एक एम्प्लॉय आता है, एक मतलब वो आता है, अगर नहीं आप इनसे पूछिए कि सर्विस इंडस्ट्री में उससे रेलेवेंट देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर ये इंडस्ट्री बता सके तो। Someone has asked, sir, are you on LinkedIn? हाँ, यस। Um, फोटो पता नहीं है या नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली मशहूर नाम है। the person is saying IT services. आईटी सर्विस में यार मैंने तो यही देखा कि ये ऐसे ही होती है, आप थ्रू टिकट्स इसको कैप्चर करते हैं, जनरेट करते हैं कि टिकट्स आप जनरेट करवाते हैं और जो क्लाइंट है उससे भी जनरेट करवाएं, और अपनी एक उसको एक विंडो दे दें कि वो आपकी वेबसाइट पे इन होकर तो वहाँ पे टिकट जनरेट कर दे, या आपको ईमेल कर दे, आप उस ईमेल की बेस पे टिकट जनरेट कर दें। उस टिकटिंग सिस्टम में बेसिकली आप ऐसे की एग्जांपल ले लेना, आप कोई बस में मेल करते हो, आपको कम्युनिकेशन आईडी देते हैं कि जी ये आपका रेफरेंस आईडी, आप नेक्स्ट टाइम इस रेफरेंस आईडी को कोड करेंगे। वजह ये होती है उससे एक तो कम्युनिकेशन से ट्रैक करने में आसानी होती है, दूसरे कि उस टिकट के साथ उस सर्टेन टास्क को की कंप्लीशन का स्टैंडर्ड टाइम कितना था और इस एक्चुअल टाइम कितना लगा, ये कैप्चर हो जाता है। तो जैसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है तो आप इस पोजीशन में चले जाते हैं कि आप डिसीजन कर सकें यार किस तरह का काम है जो ज्यादा टाइम टेक करे। Okay. Ghulam Fareed has said thank you. Thank you. It was quite informative. Said Junaid Ali Shah has said thank you, sir. Wonderful, interesting experience that I had. Great job. शुक्रिया जी आपका। Please arrange more and more sessions like that. Sure we will. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।